मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। Today is the session 8 of the book Life and Spiritualism by Dr. Roll. And we have with us Mr. Uday Bhanu Mohapatra who will manage the session. Over to you, Mr. Uday. Jai Guruji. Jai Guruji, Aunty Ji. Thank you for giving me this opportunity. Jai Guruji, Sangat Ji. I'm Uday Bhanu, a disciple of our beloved Guruji. Came to USA in 2006 January as a software engineer after touching the lotus feet of Guruji and carrying his love and blessings. Thank you, Aunty Ji, for giving me this seva, and I feel blessed to render the seva of introducing the reader cum analyst and the interventionist for the current session. Guruji ko koti koti pranam and anandam sukrana. So before I introduce the reader, your video. this video is not starting. Okay. No issue. Carry on. Yeah, it is not coming up. I'll check it later. Sorry. Okay. Yeah. Jai Guruji. So before I introduce the reader of the book, I would like to introduce about the author of the book, Guruji Life and Spiritualism by Dr. Chavilendra Raul. Is the civil servant of Punjab cadre. He is associated with Guruji since Jalandhar days. So today is the 8th session of the book reading and analysis of the book Guruji Life and Spiritualism, again authored by Mr. Rahul, whom Guruji called Rahul. It is Guruji's hukum that Rahul uncle would write a book about Guruji. So I have been attending the previous sessions and I'm highly benefited and enlightened about Guruji's life, his mission and spirituality. Today's session is regarding Guruji's sharing of his love and affection for the humanity to alleviate their sufferings from diseases, physical and mental sufferings. So for today's session, the reader cum analyst as well as the interventionist will primarily devote to the page 74 to 84 of chapter 3 of the book, which is titled Assuaging with Compassion and Healing. So now I would introduce today's reader cum analyst, Pankaj Singh uncle, who came to Guruji's fold in the mid-1980s. Pankaj uncle and his family are ever grateful to Guruji for the innumerable ways he has blessed the family. Regarding the personal front of Mr. Singh, he is an IAS officer of 1988 batch belonging to the Rajasthan cadre. During his service period, he has served the state of Rajasthan, CBI, CRPF, and BSF. He had the distinction of serving as a Director General of BSF, a post his esteemed father, Mr. Prakash Singh, also was holding. This is a rare distinction of the family. So Mr. Singh's pinnacle in public service came when he joined as Deputy National Security Advisor of India just after his normal superannuation. And now I would like to introduce about the interventionist of the session, Mr. Usha Singh Aunty. Usha Singh Aunty says, after coming to Guruji's Saran, the individual identities have no meaning. Similarly, the educational, professional, as well as social categorization get merged into a single entity of Guru Parivar. So Usha Aunty, who is originally from the holy city of Prayagraj, was fortunate to have the initial blessings of our revered Guruji when he was in Empire State. Their family has been immensely blessed by Guruji, including the curing of severe asthma of their daughter Nitu. The blessings of Guruji is always there when the family moved from Singapore to Seattle, USA,
where they are currently located. From my 13 years of association and experience with Guruji's Sangat in Seattle, which is started since 2007 by Usha Aunty. And I feel that Usha Singh Aunty is the heart and soul of Seattle Sangat, and sincerely guiding everyone in the Sangat in Seattle here, the path towards the lotus feet of Guruji for attaining his love and blessings. Now it is like past 11 p.m. in Seattle, and Usha is still awake to render the seva till 1 a.m. midnight. So Guruji is great to give us such strength. And Jai Guruji, without further delay, I would invite Mr. Pankaj Singh uncle to start his reading cum analysis. Thank you. Over to Pankaj Uncle Singh. Jai Guruji. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, और साथ संगत जो आज मौजूद है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री उदय भानु महापात्रा जिन्होंने आज इंट्रोडक्शन किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और किस तरह से साथ संगत होती है और किस प्रकार से नियति होती है, आज आपने इंटरवेंशनिस्ट भी मिसेस उषा सिंह को बनाया, जो मेरी अपनी भाभी हैं, और जिस पे हम पर और हमारे परिवार पे सभी पे गुरुजी की महती कृपा आज से नहीं काफी लंबे समय से रही है। और हम कृतार्थ हैं गुरुजी के कि उन्होंने हमको ऐसा मौका दिया और अपनी शरण में लिया और एक दिशा दिखाई कि जीवन यापन के लिए जिंदगी को किस प्रकार से जीना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा काम करते हुए, और जो प्रकार से गुरुजी ने निर्देश दिए उसका हमने पालन किया। राहुल अंकल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक इतनी सुंदर किताब लिखी है, और सुंदर किताब का जो विवेचन हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, और आज 8वां इसका सेशन है। और चैप्टर 1 हम लोग ने देखा एक ब्यूटीफुल जर्नी, और किस प्रकार से ये यात्रा शुरू हुई, प्रारंभ हुई। और चैप्टर 2 में आता मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी। पिछले सेशन में भी आपने सुना किस प्रकार से महापुरुष का यहाँ अवतरित हुए, किस प्रकार से लोगों के संपर्क में आए, और किस प्रकार से उनके जो जीवन काल में परेशानियां, दुविधा और किंतु परंतु की जो डाउट्स हैं उसको किस प्रकार से उन्होंने शनै शनै दूर किया। राहुल अंकल ने इतनी सुंदर किताब लिखी है, और आज का जो सेशन है उसमें बहुत सारे इस प्रकार के बड़े जीवंत उदाहरण भी दिए हैं, जिसमें दिखाया है कि किस प्रकार से लोग जब टोटली सरेंडर करके, टोटल आत्मसमर्पण करके गुरुजी की शरण में गए, तो उन्होंने उनकी जो परेशानी थी, दुविधा थी, उसको न केवल दूर किया बल्कि तुरंत प्रभाव से दूर किया, और तुरंत ही उनकी परेशानियां, चाहे वो मानसिक रूप से हों, शारीरिक रूप से हैं, तुरंत ही चली गई। तो राहुल अंकल, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतनी सुंदर किताब का, इतना, और जो शनै शनै इसका विवेचन किया जा रहा है, और जिस प्रकार से साथ संगत को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका एक प्रचार हो रहा है, और गुरुजी की महिमा जिससे लोग आज तक शायद नहीं जान पाए थे, उससे भी जान पाएंगे। आज का जो तीसरा चैप्टर है वो है एसुएजिंग विद कंपैशन एंड हीलिंग। एसुएजिंग का अर्थ है कम करना, और कंपैशन यानी एक पूर्ण रूप से दया भाव, और हीलिंग मतलब उपचार। किस प्रकार से गुरुजी किसी भी व्यक्ति का, जिसको वो चुनते थे, जिसका समय आ गया था कि उसके कष्टों का निवारण किया जाए, और एक गुरुजी अपनी शरण में ले लेते थे, किस महती प्रकार से, किस अनेकों तरीके से वो उसकी परेशानी का निवारण करते थे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। राहुल अंकल ने बड़े शुरू में ही इस चैप्टर के लिखा है कि किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट भी जो होता था व्यक्ति को, या कोई बीमारी होती थी, वेदना होती थी, या कोई भी प्रकार का, और शारीरिक ही नहीं, मानसिक, कई बार क्या होता है, आदमी गिर गया, चोट लगी, पैर में चोट आई, एक फिजिकल चोट आती है,
कई बार क्या होता है, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, घर की परेशानी, दुनिया की परेशानी, संगे साथी की, अपने काम की परेशानी, और इससे जो उसकी बीमारी और परेशानी बढ़ती है उसको साइकोसोमैटिक यानी मानसिक रूप से जो शरीर में विकार उत्पन्न होता है, परेशानी होती है, साइकोसोमैटिक किस्म की जो परेशानियां हैं उसका भी निवारण गुरुजी ने बड़े ही तुरंत प्रभाव से, जिसको अपनी शरण में लिया, तुरंत ही किया। गुरुजी की जब भी किसी पे कृपा होती थी, तो मेरे ख्याल से गुरुजी की कृपा का जो अपार और समुद्र और दया भाव का, प्रेम का और जो बहता था, मेरे ख्याल से वो देखते ही बनता था। गुरुजी कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव करना, भाषा के विषय में, किसी जात संप्रदाय के विषय में कभी किसी प्रकार से भी नहीं किया। जिसको भी उन्होंने अपनी शरण में लिया, अपने पास बुलाया और देखा कि इस काल चक्र में उस व्यक्ति का समय पूरा हो चुका है, बड़े ही सहज भाव से उन्होंने उसके कष्टों का निवारण किया। गुरुजी तुरंत विद इन नो टाइम समझ जाते थे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या व्यक्ति सोच रहा है, क्या उसकी परेशानी है, और किस प्रकार से उसकी परेशानी का निवारण करना चाहिए। वो एक बड़े सूक्ष्म तरीके से ये भी देख लेते थे कि व्यक्ति के एक एक सेल, एक एक अंग, एक एक कोशिका और एक एक ऑर्गन में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। और गुरुजी को कभी भी किसी बात की बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो महज अपने अपने एक अलौकिक जो शक्ति जो उनमें थी, उससे सहज भाव से समझ जाते थे कि किस प्रकार से, और तत्पश्चात किस प्रकार से दुनिया की और इस ब्रह्मांड की अलग अलग किस्म की शक्तियों को केंद्रित कर और उस व्यक्ति का विकार या तो नष्ट करना है अथवा उसको जीवंत करना है किसी प्रभाव से। मेरे ख्याल से वो अपने आप ही खुद उसको डिसाइड करते थे, सोचते थे, और चाहे कोशिकाओं को ध्वस्त करना है यानी कैंसरस सेल्स को यदि खत्म करना है तो मात्र कैंसर सेल्स को ही खत्म करते थे, और यदि किसी चीज को जीवंत करना है यानी उसके आर्टरी के ब्लॉकेज को खत्म करना है तो उसको नया पुनः एक जीवन दान भी गुरुजी खुद ही करते थे। गुरुजी का इस सब में एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल था कि कोई भी काम करें हम, कोई भी व्यक्ति का यदि मदद करनी है तो मेरे ख्याल से उसका मन चित्त एकदम स्थिर और शांत होना चाहिए। देखिए, किसी भी जगह यदि किसी प्रकार की एक्टिविटी चल रही हो और वहां शोर शराबा हो या डिस्टरबेंस हो, तो मेरे ख्याल से उसमें एक नई चीज का समावेश करना मेरे ख्याल से मुश्किल का काम होता है। तो गुरुजी खुद तो योगी थे, महायोगी थे, और वो योग, प्राणायाम, ध्यान और कई चीजों से अपने मन को तो तुरंत प्रभाव से शांत कर लेते थे। किंतु एक अन्य व्यक्ति का दिमाग को शांत करना, उसके मन में 10 तरह की चिंताएं हैं, 10 तरह की परेशानियां हैं, दुनिया में है, तो मेरे ख्याल से उसको हर चीज की एक लालसा, परेशानी, दिक्कत हर प्रकार की, और एक चंचल मन, हमेशा कहा जाता है कि मन हमेशा चंचल होता है, और इस प्रकार से उसको जब तक शांत ना किया जाए तब तक उसमें एक नई चीज का, एक पॉजिटिव एनर्जी का समावेश किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये इसलिए वो करते थे, और गुरुजी का एक जो बेसिक प्रिंसिपल था कि आप संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के मेरे पास आइए, ये किंतु और परंतु दरवाजे पे छोड़िए, और पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण जब हो, कंप्लीट सरेंडर, तभी आप अपने परेशानियों से छुटकारा पा पाएंगे। मैं इसके लिए एक पढ़ना चाहूंगा, पेज 75 पे राहुल जी ने बड़ा लिखा है, द डिवाइन एनर्जी, द फ्लो ऑफ लव एंड कंपैशन ऑफ गुरुजी, द कॉकटेल ऑफ ब्लेसिंग्स कंप्राइजिंग ऑफ चाय प्रसाद, सोलफुल शब्द्स फ्रॉम द गुरबानी, लंगर प्रसाद। आप सब ने इसका एक एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। सत्संग एंड द लाइट मूड from the folk and Sufi songs during the langar and afterwards
आपको ध्यान है लंगर के बाद कई लोग आंख चुराते थे गुरुजी से कि हमको भेज ना दें, और लंगर के बाद का भी जो एक संगत का रसास्वादन है हम पूर्ण रूप से लें. And afterwards, from the folk and Sufi songs during the langar, and afterwards deliberate the wavering minds to a certain degree of stillness and connectivity with the divinity. ये बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोगों को किस प्रकार से उनके मन को शांत करके और तत्पश्चात एक सकारात्मक स्वरूप से जो शक्ति का एक अर्जन करके उसके शरीर में मानसिक रूप से प्रवेश करना है, जिससे गुरुजी की जो मेहर है, जब व्यक्ति का मन शांत होगा, चित्त शांत होगा, डिस्टर्बेंस कम होगा, तो गुरुजी की मेहर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी. एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा. 1 और 1 11, 1 और 1 111 बनते हैं, और जिसके पश्चात गुरुजी का काम इतना सरल हो जाता था कि गुरुजी तुरंत ही कहते थे, जा कल्याण कित्ता, कल्याण कित्ता, कल्याण हो गया. और मैं कई एग्जाम्पल्स भी दूंगा जो राहुल साहब ने अपनी किताब में लिखे हैं, किस प्रकार तुरंत इधर गुरुजी ने कोई उपचार किया और उधर तुरंत उनकी परेशानी का निवारण हो गया. राहुल साहब आगे ये भी लिखते हैं कि किस प्रकार से लोग जब शारीरिक रूप से ग्रसित होते हैं, मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, तो ये एक आम धारणा है कि उस व्यक्ति में प्रेम का, स्नेह का, या जो हमारी संगत है उसका जो एक अच्छा प्रभाव होता है, उसका कहीं ना कहीं अभाव, उसकी कहीं ना कहीं कमी अवश्य होती है. व्यक्ति जब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, सोचता है दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं, एक अहम भाव जिस दिन आ जाता है, मेरे ख्याल से एक उसकी मनोवैज्ञानिक मन स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि मेरे अलावा कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से उस दिन उसका न केवल पतन शुरू हो जाता है, बल्कि दूसरों से एक अलगाव, दूरी और एक प्रेम और स्नेह का अभाव भी होना शुरू हो जाता है. और जब ये होता है तो व्यक्ति एक अकेलापन, एक नकारात्मक भावना और एक शनय शनय एक अलग किस्म की मानसिकता से ग्रसित हो जाता है, जिसमें गुस्सा, दुख, विषाद, उदासीनता, मतलब आप कहें तो रेज, एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति को परेशानी का सबब बनाता चला जाता है. किस प्रकार से मानसिक रूप से जब व्यक्ति परेशान होता है तो किस प्रकार से वो एक मैनिफेस्ट करता है शारीरिक रूप में प्रॉब्लम आदमी को, इसका जब मानसिक रूप से, और ये सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं कि जब मानसिक रूप से आदमी परेशान होता है तो कभी उसको धीरे धीरे बीपी आ जाता है, शुगर आ जाता है, और इन सब का इलाज व्यक्ति ने देखा है कि किस प्रकार से गुरुजी ने अपने हाथों से और तुरंत प्रभाव से किस प्रकार से किया. पेज 76 पे अपने किताब में राहुल साहब लिखते हैं कि इट ऑफन लीड्स टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो मैंने आपको बताया, मनोवैज्ञानिक दबाव, इम्पैक्टिंग इन फिजिकल एलिमेंट्स, शारीरिक परेशानियां like hypertension, psychosomatic disorders like alexithymia, or a deterioration in the already existing physical ailments. It also leads to, ध्यान दें आप सभी, इसके और क्या प्रभाव पड़ता है? It also leads to ineffectiveness of the medicine of any system. जब व्यक्ति के मानसिक रूप से इस प्रकार की परेशानी, दिक्कत रहती है, तो किसी भी प्रकार की दवाई, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या किसी प्रकार की भी ज्यादा काम नहीं कर पाती है. जहां तक हम देखें कि गुरुजी का अपने शिष्यों के प्रति, अपनी संगत के प्रति प्यार एक अपरंपार था. किस प्रकार का प्यार, स्नेह, दया भाव न केवल भरपूर था, एक सागर की तरह एक अविरल धारा प्रवाहित होती रहती थी. कभी कोई किसी से न भेदभाव करना, न किसी को एक अलग दृष्टि से देखना, और न किसी को एक अलग दरकिनार करना, उनके कभी भी किसी एक नेचर में ही नहीं था. गुरुजी स्पष्ट रूप से कहते थे, मैं डॉक्टर अपना काम करांगा और मैं अपना काम करांगा, कि डॉक्टर को अपना काम करने दो. कई चीजों में डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है, पर वहां मेरी ये अलौकिक ब्रह्मांड के द्वारा अर्जित
और केंद्र की हुई शक्तियां जब मैं तुम में प्रवाहित करूंगा, तुम इसे अंगीकार करोगे, तभी तुम्हारी इस परेशानी का निवारण होगा। गुरुजी कहते थे जितनी भी दुनिया में टेक्निक्स हैं, और राहुल साहब ने इसके बारे में लिखा भी है, और कुछ जैसे रेकी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हीलिंग, फेथ हीलिंग, आपने सभी ने सुना होगा। और लोग इसके बारे में कहते हैं सर अगर फेथ हीलिंग कर लीजिए, टैरोट कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से आपकी परेशानी ये सभी एक दिशा में जाती हैं। ज्यादातर ये एक कमर्शियल ओरिएंटेशन की होती हैं, और इसमें वो एक अलौकिक दिव्य शक्ति का अभाव होता है। जो दिव्य अलौकिक शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति है, जो एक आपके शरीर में जाके जिस प्रकार का एक ऊर्जा का संचारण करती है, उसका अभाव था। ये कमर्शियल, बाजारू और इस प्रकार की चीजें ज्यादातर ये आपको मदद नहीं करेंगी जब तक आपकी स्वयं की मनस्थिति, शारीरिक स्थिति ठीक ना हो। गुरुजी जब भी, और एक नहीं कई एक्सपीरियंसेस आपने देखे होंगे, सुने होंगे, और अपने सामने देखे भी होंगे, शायद अपने परिवार में भी, किस प्रकार से व्यक्ति को कैंसर है, उसने अपना इलाज कराया, डॉक्टर ने इलाज कराने को कहा, और किस प्रकार से उसका कैंसर का मर्ज निकला। गुरुजी के पास आए, गुरुजी की शरण में आए, और गुरुजी ने कहा कि एक बार पुनः टेस्ट करा के आओ, तुम्हारा इलाज कर दिया। इलाज के तरीके मैं कुछ देर में भी आपको बताऊंगा, सारे जो लिखे गए हैं। और उसके बाद अगली बार जब टेस्ट कराया, कैंसर के सिम्टम्स गायब, कोई आपको दूसरी परेशानी है उसके सिम्टम्स गायब, हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट के सिम्टम्स गायब। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई साइंस नहीं है। देखिए आज की जो साइंस है वो भी उसी तक सीमित है जितने प्रिंसिपल्स और थियरीज को हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढा है। पर क्या इसका मतलब यह है कि इसके अलावा दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है, और कोई ऊर्जा नहीं है, और कोई प्रिंसिपल्स और थ्योरीज नहीं है? आप देखिए हमारे पुराने वैदिक टेक्स्ट में अलग अलग, यदि आप एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, या आपके पुराने आपने दादा परदादा से सुना होगा कि एक ऐसे पहुंचे हुए मुनि संत थे जो एक बार एक जगह और दूसरी बार दूसरी जगह एक साथ दिखाई देते थे। क्या आज साइंस इसको एक्सप्लेन कर सकती है? साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यदि हम 20-25 साल पहले ये कहते कि भाई मैं यहां पे टाइप करूंगा और पंकज सिंह की संगत उषा सिंह जी इंटरवेंशनिस्ट सियाटल में बैठ के देखेंगी, बोलेंगी और एक साथ उनके संगत होगी, शायद ये कोई विश्वास नहीं कर सकता। किंतु आज साइंस ने ये साबित किया है। मैं यही कहना चाहता हूं, पूरे हमारे ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितनी चीजें हैं, आज शायद साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे हैं, और शायद आने वाले समय में कुछ डिस्कवर हो, कुछ नहीं हो। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि जब मेरे पास आओ तो ये किंतु परंतु, ये साइंस बाहर छोड़ के आओ, और पूरी तरह से जब समर्पित, समर्पण भावना से आओगे, तुम्हारे कष्टों का निवारण निश्चित तौर पे होगा। इसीलिए जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो, शायद गुरुजी 4 लड्डू एक्स्ट्रा देते थे कि लड्डू खाने से डायबिटीज बढ़ेगा, ये आपकी साइंस कहती है। लड्डू रूपी प्रसाद, लड्डू रूपी दिव्य शक्ति को जब तुम खाओगे तो तुम्हारा डायबिटीज चले जाएगा। ये एक ब्रह्मांड का सूत्र है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए बहुत से लोगों का एक परेशानी का निवारण हुआ, अपने परेशानी से दूर हुए। गुरुजी तुरंत समझ जाते थे किस व्यक्ति का समय आ गया है, और काल चक्र में किस प्रकार से किस व्यक्ति के कष्टों का निवारण अब करना अनिवार्य है। इस काल चक्र में हमारा जो एक समय का काल है, उसमें गुरुजी किस प्रकार से एक शिव भगवान स्वरूप के सूत्रधार होके आए, और एक सारी दुनिया की शक्तियों का, ऊर्जाओं का एक केंद्रीकरण करके, और जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति किसी न किसी वेदना से ग्रसित है, उसको मेरे ख्याल से उसका निवारण करना, उसके शक्तियों का संचार करना, उस व्यक्ति द्वारा उसको मन से, तन से अंगीकार करना, और उसकी परेशानी हमेशा चली जाती थी। और व्यक्ति एक बार पुनः
जिस स्थिति में था, एक जीवंत, एक सशक्त और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सामने आता था। जो राहुल साहब ने लिखा है कि व्यक्ति वॉज रिजुविनेटेड, एम्पावर्ड एंड बैक एज अ नॉर्मल पर्सन। मैं एक बार फिर उनकी किताब से ही पढ़ के आपको बताऊंगा कि हाईली इवॉल्व्ड सोल्स लाइक गुरुजी फील अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल कॉलिंग, एक प्रकार का दिव्य एक कॉलिंग आती है, टू ईज द सफरिंग्स ऑफ पीपल, एनिमल एंड नेचर। Such enlightened persons are able to shift unseen divine energy, जो आपको मेरे को दिखाई नहीं देती, वो दिव्य ऊर्जा, वो ब्रह्मांड की वो शक्ति, for the greater good of the collective, एक अच्छे उद्धार के लिए, अच्छे काम के लिए, जनमानस के लिए। They are the people who allow the energy of divinity to flow through them in a way that guides, rejuvenates and empowers others। ये कहा गुरु राहुल साहब ने अपने किताब में भी लिखा है कितने प्रकार की शक्तियां गुरुजी में थी और किस प्रकार से वो उसको एक सांसारिक एक स्वरूप दे करके वो इलाज करते थे। कितनी बार उन्होंने मात्र चम्मच से इलाज किया। चम्मच में कोई शक्ति नहीं है, पर एक आपको और मेरे को दिखाने के लिए शायद एक चम्मच वो सूत्रधार बना, एक सूत्र बना कि चम्मच से कुछ न कुछ इलाज किया जाए। कई बार गुरुजी के परिवेश में उसने दूसरा स्वरूप लिया, कई बार पान के पत्ते के स्वरूप में। पान का पत्ता किस प्रकार से शायद अंदर के विकार, अंदर की परेशानियां, अंदर के जो गंदगी है उसको किस प्रकार से एब्जॉर्ब करके और बाहर निकाल देता था, इसका भी जीवंत उदाहरण है। जगह जगह आपने देखा किस प्रकार कई बार गुरुजी लोगों को कहते थे कि एक तांबे का लोटा लेके आओ, और तांबे का लोटा लेके आओ और उसमें गुरुजी मंत्र फूंकते थे, उसको ब्लेस करते थे और तत्पश्चात कहते थे कि घर जाके रात्रि के समय इसमें पानी भर लेना। प्रातः काल उठने के टाइम सबसे पहले आधे ग्लास का जलपान करना, पानी पीना, और उसके बाद आधे ग्लास से उसको स्नान करना, पानी से स्नान करना। इसमें जो शक्ति का एक संचार है, न केवल पानी आपके शरीर के अंदर गया, अंदर के विकार धोए, निकाले, शुद्ध किए, पर एक ऊपर से भी जो शारीरिक शरीर में ऊपर से जिस प्रकार के विकार हैं उनको भी किसी प्रकार से नष्ट करके और उसका निवारण किया। इसी प्रकार कई गुरुजी ने कई बार लोगों को रुद्राक्ष की माला दी, अमृत का पान कराया, और कई बार अपने हाथों से अपने संगत को रोटियां प्रदान की कि शायद इस रोटी में वो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जिससे कि शायद व्यक्ति के परेशानियों का निवारण हो सके। मैं अब आपको कुछ समय वो जो उदाहरण राहुल साहब ने दिए हैं उसके विषय में भी आपको बताता हूं। पान के पत्ते के उदाहरण राहुल साहब ने कई बार दिए हैं और ये कई लोगों के द्वारा कई जो गुरुजी कहते थे अंकल और आंटी को अपने परेशानियों से उन्होंने दूर कराया है। सबसे पहले उन्होंने गीतन अग्रवाल आंटी जी का एग्जाम्पल बताया है। ये पेज 78 से लेकर के पेज 84-85 नहीं और बाद तक भी बहुत सारे इस प्रकार के जीवंत उदाहरण राहुल अंकल ने लोगों से पूछकर, अपने स्वयं की आंखों से देखकर और साथ संगत में लोगों से जानकारी करके इस प्रकार के लिखे हैं। और ये बिल्कुल ही सही और खुद के अपने प्रेरणा स्रोत हैं कि किस प्रकार के एक महायोगी गुरुजी से संपर्क के दौरान इस प्रकार के लोगों की परेशानियों को से छुटकारा मिला। गीतन अग्रवाल जी सरदार उमराव सिंह जी एक मेंबर पार्लियामेंट पंजाब में हुआ करते थे, उनकी ग्रैंड डॉटर थी और उनको पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। 15 साल की ये थी और पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। इन लोगों ने गुरुजी को ढूंढने की कोशिश की और जब परेशानी से निवारण नहीं हुआ तो पीजीआई चंडीगढ़ में जाके उनके सारे टेस्ट करा डाले।
बताया कि पेट में एक सिस्ट है और वो फट गई है और उससे बहुत ज्यादा मवाद एब्सेस फैल गया है, जिसके लिए सर्जरी कराना अत्यावश्यक, तुरंत आवश्यक है। परिवार को गुरुजी में इतना फेथ था, वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से दिशा निर्देश मांगे कि गुरुजी आप जैसा निर्देश देंगे हम उसी प्रकार से उसी रास्ते पे चलेंगे। गुरुजी ने बच्ची के पेट पे पान के पत्ते लगाए, कुछ मंत्र फूंका और कहा कि ठीक है, जा तेरा कल्याण कीता। और उसके बाद जा करके जब टेस्ट वगैरह कराए गए तो न तो पेट में किसी प्रकार का एब्सेस, न परेशानी और कष्ट का एकदम पूर्ण रूपेण खात्मा गुरुजी ने 1 चम्मच के पान के पत्ते के द्वारा कर दिया। इसी प्रकार शशि आहूजा जी को पेप्टिक अल्सर था, जो कि उस स्थान पर गुरुजी ने पान के पत्ते लगाए और पेप्टिक अल्सर भी आंटी का खत्म हो गया। ललिता माथुर जी के वो एक लो ग्रेड फीवर बहुत दिनों से चला आ रहा था और उनके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर थे जेएनके काडर के, और सस्पेक्टेड था कि शायद कैंसर अथवा टीबी भी हो सकती है, किंतु पता पक्की तौर पे नहीं चल पा रहा था। गुरुजी ने पान के पत्ते उनके सिर पे लगाए और बताया रात भर रखे रहें और मान के चलिए सवेरे पे जो लो ग्रेड फीवर इतने दिन से आ रहा था एकदम छू मंतर चला गया। किसी प्रकार का न पेट दर्द, न सिर दर्द, न फीवर, कुछ भी। इन सारे एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया तुरंत प्रभाव से मात्र पान के पत्ते से। पान का पत्ता कोई दवाई नहीं है, मगर पान के पत्ते में जो दिव्य शक्ति और सारे शक्तियों का केंद्रीकरण गुरुजी ने किया, शायद हमको वो समझ में ना आए, पर एक जरिया बना और इसी प्रकार से सबके कष्टों का निवारण हुआ। इसी प्रकार एक जस्टिस एएस गिल थे पंजाब में, उनकी वाइफ मिसेस गिल को ट्यूमर और एक मैलिग्नेंसी हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा कि जब तक इमीडिएट सर्जरी नहीं कराई जाएगी तब तक परेशानी बनी रहेगी और व्यक्ति परेशान ही रहेगा हमेशा के लिए। गुरुजी ने कहा नहीं, तुम मेरे अमृत का पान करो और तुमको ऑपरेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं। परिवार को इतना विश्वास था और गुरुजी में एक इतना समर्पण भाव था कि उनको किसी प्रकार की भी वो प्रॉब्लम गुरुजी के अमृतपान के पश्चात नहीं पड़ी। और जब 2 साल बाद कोई पेट में परेशानी आई और वो किसी प्रकार का टेस्ट कराने गए तो न तो कोई मैलिग्नेंसी थी, न ट्यूमर था, सब चीज एकदम गायब हो चुकी थी। इसी प्रकार बहुत पहले की बात है, जालंधर में गुरुजी कई बार लोगों को, अपनी साथ संगत को रोटियां अपने हाथ से खिलाते थे। इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग उदाहरण राहुल साहब ने अपनी किताब में दिया है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे पंजाब में, उनकी वाइफ मिसेस जोगा चीना, उनको माइग्रेन की परेशानी बहुत लोगों को होती है, परेशान रहते हैं और ये लगता है कि भाई माइग्रेन तो जिंदगी भर रहेगा, ये नहीं जाने वाला। उनको माइग्रेन रहती थी और एक बार जालंधर के मंदिर में जब वो बैठी थी, एक बार पुनः बड़ी तेजी से सिरदर्द शुरू हुआ और वो माइग्रेन था। उनकी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी से कह दूं कि मेरे को माइग्रेन है, शायद गुरुजी मेरी परेशानी का निवारण कर दें। पर गुरुजी तो अलौकिक हैं, अंतर्यामी हैं और दिव्य दृष्टा है। उनको तुरंत समझ में आ गया कि व्यक्ति किस कारण से परेशान है। उन्होंने मिसेस चीना को बुलाया अपने पास और कहा कि ये 4 चपाती लाके दी थे, रोटियां, 4 रोटियां दी कि चारों रोटी खा ले, तेरा कष्ट चला जाएगा। अब 4 रोटी तो शायद मिसेस चीना के लिए ज्यादा थी। उन्होंने 3 रोटियां खाई और जब गुरुजी अंदर के कमरे में गए तो 1 रोटी चुपचाप अपने बैग में रख ली कि भाई घर जाके खा लेंगे, अब 4 रोटी तो कहां से खाएं। कुछ समय पश्चात, कुछ हफ्तों पश्चात जब मिसेस चीना मंदिर में आई, जालंधर मंदिर में आई और गुरुजी ने पूछा तो सिर दर्द कैसा है तेरा, माइग्रेन? उन्होंने कहा गुरुजी 90% तो ठीक हो गया है पर 10% अभी बचा हुआ है। और गुरुजी ने तपाक से बोला तो चौथी रोटी खाली होती तो सिर दर्द चला जाता।
मतलब कि आप देखिए, गुरुजी इस प्रकार के दिव्य दृष्टा हैं। वो कमरे में गए, मिसेस टीना ने एक रोटी छिपाई, 3 रोटी खा ली, पर जो चौथी रोटी नहीं खाई उससे 10% माइग्रेन उनका बचा रहा और वो उससे परेशान रही काफी समय तक। तो ये गुरुजी का तरीका था कि एक जब पूर्ण समर्पण भावना में आपने मात्र 90% काम किया तो ट्रीटमेंट भी 90% ही होगा। शायद आपने 3 रोटी खाई पर 75% रोटी खाई, आपने 25% नहीं खाया। गुरुजी ने इलाज तब भी आपका 90% करके दिया, और यदि आप पूरा कर लेते, पूरी एक कंप्लीट सरेंडर के तौर पे यदि आप सारी रोटियां खा लेते, तो शायद पूरी तरह से उनका सर दर्द का भी निवारण हो जाता। इसी प्रकार से गुरुजी अपने चम्मच से भी कई बार इलाज किया करते थे। चम्मच को स्थान पे, जो ग्रसित स्थान है या जहां परेशानी की बात है, वहां फेरते थे और इस प्रकार से व्यक्ति का कष्ट भी चला जाता था। अनीता वर्मा जी के बारे में कहा जाता है 1992 में उनको बहुत ज्यादा घुटने में परेशानी थी, दर्द था, और कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। जैसा राहुल साहब ने भी किताब में लिखा है कि कई बार जब मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति इतना ग्रसित हो जाता है, तब कोई दवा भी उस नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव शक्तियां, नेगेटिव सोच और व्यक्ति का जो एक अंदर से मन जो खराब होता है, तो उससे कई प्रकार जो जूसेस, एनर्जी सिक्रेट होती है, उससे कई बार दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। गुरुजी ने चम्मच लिया, उनके घुटने पे हिलाया, दिखाया और करके, और पेन तुरंत प्रभाव से, immediately the pain was gone, and Mrs. Anita Verma stood relieved of the knee pain that she had been suffering for so long, और कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। इसी प्रकार से किरण सूद आंटी के बारे में भी राहुल साहब ने लिखा है कि किस प्रकार से उनको परेशानी कुछ चल रही थी, पेट की परेशानी चल रही थी, और गुरुजी ने एक बार साथ संगत में बिना उनके बताए, बिना उनके कहे उनको बुलाया और कहा कि यहीं लेट जाओ, और उसके बाद जो चम्मच उनके पेट के ऊपर घुमाया, कुछ मंत्र फूंके कई बार, और उसके बाद कहा जाओ तेरा कल्याण कीता, तेरा कल्याण कर दिया। यू हैव बीन ब्लेस्ड by this energy which was radiating through the spoon inside your body to take care of all your illnesses, all your problems that were inside in a physical form. और गुरुजी ने जब कहा और ये एक संपर्क स्थापित किया, उसके बाद से उनकी परेशानी किरण आंटी की चली गई और वो एकदम कुशल मंगल हो गई और बिल्कुल ठीक ठाक उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। इसी प्रकार से कर्नल चैटर्जी की बात भी की है, जिनको कि बहुत ज्यादा फीवर और हेडेक रह रहा था काफी दिन से, और काफी हाई फीवर भी चल रहा था, करीब 103 डिग्री फ़ारेनहीट लिखा है। और जब एक बार गुरुजी स्वतः उनके घर पहुंच गए, गुरुजी जब पहुंच गए तो वहां एक डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद था, और डॉक्टर उनका कह रहा था, देखिए आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये अभी काफी समय चलेगी और इसमें मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, आपको दवा वगैरह लेनी रहेगी। गुरुजी ने एक चम्मच मंगाया, उसमें कुछ नमक डाला, कुछ पानी डाला, और तुरंत चम्मच में ये नमक और पानी घोल के और उसकी नाक में डाल दिया। तुरंत प्रभाव से उसकी नाक क्लियर हो गई और वो बिल्कुल एकदम उसको आराम का महसूस हुआ। और जब गुरुजी ने डॉक्टर से तुरंत वहीं कहा, अब इसका टेम्परेचर लो। अब विल यू बिलीव दिस, थोड़ी देर पहले व्यक्ति का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहीट, एंड विद इन नो टाइम गुरुजी के केवल पानी, नमक और चम्मच से नाक के अंदर डालने पे उसके कष्ट का निवारण हुआ और पूरी बॉडी का टेम्परेचर 103 से नॉर्मल हो गया। इसको कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं करती, इसका कोई लॉजिक नहीं है। एंड आपको जब गुरुजी की इस प्रकार से कृपा हो, गुरुजी की मेहर हो, आई डोंट थिंक यू शुड बी लुकिंग फॉर लॉजिकल्स। जैसा मैंने आपको बताया, दुनिया में बहुत सारी इस प्रकार की शक्तियां हैं जिससे आप और मैं
अनभिज्ञ हैं, वी डू नॉट नो अबाउट देम। छोटी सी चीज, यदि आप स्टार ट्रेक देखते हैं, किस तरह से व्यक्ति को एक जगह से ट्रांसफॉर्म करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। इस तरह की शक्ति है या नहीं, शायद नहीं, पर किसी ने कल्पना की है, और शायद आज नहीं भविष्य में इस प्रकार की शक्ति हो। और यही वो शक्ति है जिसके फलस्वरूप आप किसी पुराने सधे हुए योगी को, स्वामी को, और एक आध बार गुरु जी को भी लोगों ने 2 स्थानों पर एक ही साथ देखा भी है। और कर्नल चैटर्जी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल, डॉक्टर भौचक्के में, मगर उसके पास कोई इसका न इलाज था, न उनके पास कोई इसका जवाब था। इसी प्रकार से कई बार गुरुजी तांबे का लोटा, जो बताया गया कि तांबे का लोटा मंगवाते थे, उसको ब्लेस करते थे। तांबे का लोटा, ग्लास, किसी प्रकार का भी चीज मंगाते थे, उसको ब्लेस करते थे, और उसमें कुछ मंत्र जाप भी करते थे, मंत्र फूंकते थे, मंत्रों का एक शक्ति का उसमें समावेश करते थे, और तत्पश्चात आपको ग्लास दे देते थे कि आप ग्लास ले जाइए, रात में पानी भर दीजिए, सवेरे प्रातःकाल जब उठिए तो सबसे पहले जल का पान करिए, आधा ग्लास जल को पी लीजिए, और तत्पश्चात नहाने के टाइम आधे ग्लास से जल से नहा लीजिए। इसके कई एग्जाम्पल्स, लाइट ऑफ डिविनिटी गुरु जी के विषय में जो एक अन्य किताब है जो जितेंद्र पंत जी ने लिखी है, जीतू जीतू उनको कहते थे, कई एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं। और उन्हीं के एग्जाम्पल्स में से देखते हुए एक कर्नल मदान का एग्जाम्पल है, जिसमें उनकी ब्लॉक्ड आर्टरी, हार्ट में एक आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, और किस प्रकार से गुरु जी ने उनको तांबे के लोटे से जलपान करने को कहा, और किस प्रकार से उनकी ब्लॉक्ड आर्टरी खुल गई। आप ये देखिए, जिस प्रकार की ब्लॉक्ड आर्टरी में कुछ न कुछ एक डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तभी आर्टरी ब्लॉक होती है, और किस प्रकार से मात्र तांबे के लोटे के पानी के सेवन से, जस्ट हैविंग दैट हाफ अ लोटा और हाफ अ टम्बलर ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉपर वेसल, it was able to dissolve the deposit from the heart artery, and it became absolutely normal, which was verified by the medical tests also. इसी प्रकार मिसेस लांबा थी, उनकी भी इसी तरह आर्टरी ब्लॉक थी, पर गुरुजी के इलाज से और ये तांबे के लोटे से उनकी भी इस परेशानी से छुटकारा मिला, और उनकी ब्लॉक्ड आर्टरी बिल्कुल खुल गई। और हार्ट की जो प्रॉब्लम थी, जो एक बड़ी, इट इज द ओनली ऑर्गन जो 24 घंटे 365 दिन और जितने साल आप जिए उतने लगातार चलता रहता है, और जिस दिन इस ऑर्गन ने थोड़ा सा भी रिलैक्स या रेस्ट करने की कोशिश की, आप जानते हैं क्या उसका हश्र होगा। आर्टरी उनकी भी, मिसेस लांबा की भी खुल गई। इसी प्रकार एक चौधरी साहब थे, बीबी चौधरी, उनके लड़के को बहुत सीवियर बैक पेन हुआ करता था, और बिल्कुल बेड रिडन था, बिस्तर पे, और उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बिस्तरे पे रहता था, और बिस्तरे पे ही वाज स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम। उसको भी तांबे के लोटा से पानी का सेवन करने के लिए गुरुजी ने कहा, और शनै शनै उसका भी बैक पेन तुरंत चला गया, और वो एकदम से ठीक हो गया। इसी प्रकार एक मिस्टर कंवरलाल थे, उनकी मदर इन लॉ को नी पेन था, और इनकी वाइफ को सीवियर डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने दोनों जनों को कहा, और कंवरलाल जी पे पूरी मेहर बरसाई कि उनकी मदर इन लॉ भी और उनकी पत्नी भी एकदम अच्छी प्रकार से ठीक हो गई, और ये तांबे के लोटे का पानी का सेवन और उसका स्नान करने से। अंत में मैं आपको हमारी इंटरवेंशनिस्ट भी हैं मिसेस उषा सिंह, उनके तो परिवार में और उनकी बेटी के साथ खुद ही घटित हुआ है, पर चैप्टर के लास्ट में एक बहुत बड़ा और जीवंत उदाहरण उनका भी है। उषा जी के पति जो हैं श्री महेंद्र प्रताप सिंह, अशोक उनको नॉर्मली सब लोग जानते हैं, मेरे परिवार में सबसे बड़े मेल मेंबर हैं मेरे जनरेशन के, और वो यूएस में 1971 से यूएस में है। उनकी जो दूसरी बेटी थी नीतू, उसको बचपन से ही एस्थमा था, और एस्थमा इतना ज्यादा कि घर में किसी प्रकार के फूल नहीं आ सकते, किसी आउटडोर या स्ट्रेनुअस एक्टिविटी में वो भाग नहीं ले सकती, और उसका एस्थमा एग्रीवेट हो जाता था, बहुत परेशानी होती थी। चूंकि मेरे भाई साहब अमेरिका में थे, भाभी जी अमेरिका में थी, हर प्रकार का इलाज करा के देखा,
और आपको ध्यान है कि हैदराबाद में भी एक व्यक्ति हैं जो मछली खिला देते हैं, जिंदा मछली को कोई एक पेस्ट खिलाया जाता है और वो मछली को, जिंदा मछली को व्यक्ति को खिला देते हैं और उनके हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती है और मात्र अस्थमा का ही इलाज करते हैं। वहाँ भी होके आए, लोगों ने वहाँ भी कोशिश की, मगर वहाँ भी इस परेशानी का निवारण नहीं हुआ। एक बार वो इंडिया आए थे तो मेरे पिताजी मिस्टर प्रकाश सिंह, उन्होंने कहा कि अशोक, क्यों नहीं चल के गुरुजी को दिखा लेते हैं। गुरुजी सबकी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं और यदि नीतू की परेशानी इतनी पुरानी है और गुरुजी ठीक समझते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा फायदा ही फायदा होगा। और उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा भी, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि परेशानी जस की तस बनी रहेगी और उसमें कोई इलाज नहीं होगा। खैर, मेरे कजन ब्रदर MP सिंह, श्री अशोक एंड उषा भाभी, दोनों जने गुरुजी के यहाँ पहुंचे और गुरुजी से अपने परेशानी के विषय में बताया और गुरुजी ने कह दिया कि जा तेरी बेटी दा कल्याण कीता, सीधे सीधे गुरुजी ने कह दिया और कहा कि एक तांबे का लोटा लाओ और उसमें, जैसा मैंने पहले बताया कि सवेरे पानी पीना और उससे स्नान करना, आधे ग्लास का पानी पीना और आधे ग्लास से स्नान करना और एक ओम भी बना के लाओ, सोने का ओम, और उसको 51 दिन अपने गले में धारण करो। गुरुजी ने तो कह दिया और ओम बना के ये लोग अपने वापस चले भी गए। और उस समय US भी, सियाटल, दोनों जगह रहते थे, US एंड सिंगापुर दोनों जगह रहते थे। बच्ची भी बड़ी थी, उसको भी लगा कि शायद ये गुरुजी के यहाँ मैं सही जगह आ गई हूँ और सही शरण में गुरुजी ने मेरे को लिया है और शायद अब मेरी परेशानी का निवारण अवश्य ही हो जाएगा। लो एंड बिहोल्ड, जैसा कि गुरुजी जब कहते थे तो सटीक 51 दिन उन्होंने कहे थे और 51 दिन के बाद वो ओम का जो लॉकेट था खुद ब खुद वो गिर गया। और मेरे भाई साहब ने, भाभी कहा, भाई देखो गिर गया है, उसको तुरंत फिर से पहनाओ। और जब फिर से पहनाया गया, थोड़े बाद फिर गिर गया। तब वो रियलाइज हुआ कि भाई वो तो 51 दिन हो चुके हैं और ये धागे में गांठ बांधने से वो एक दिव्य शक्ति रुकने वाली नहीं है, उसका काम पूरा हो चुका है। उसने परेशानी और वेदना का निवारण पूरी तरह से कर दिया है और इसलिए अब वो एक अन्य रास्ते पे चल चुकी है और यहाँ उसका काम पूरा हो चुका है। आप विश्वास करें, उस बच्ची का, नीतू का, पूरी तरह से अस्थमा समाप्त हो गया। वो सारी दुनिया घूमने लगी, जगह जगह जाके आउटडोर एक्टिविटी, स्ट्रेनुअस एक्टिविटी सब करने लगी और उसका अस्थमा कम से कम आज, इस चीज को कम से कम 20 साल हो गए होंगे, वो अस्थमा वापस नहीं आया। इसी प्रकार नीतू कॉलेज जाने वाली थी और उसको था कि पता नहीं स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, और गुरुजी ने स्पष्ट शब्द दिया, इस अक्षर की यूनिवर्सिटी में तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड लो एंड बिहोल्ड, उसी यूनिवर्सिटी में उसको स्कॉलरशिप मिली और बच्ची पूरे अपने पढ़ाई की और आज एक प्रोफेशनल अपने लाइन में है। और तीसरा, जो इसी बच्ची के साथ जो कृपा एक बार बरसती है तो शायद बरसती चली जाती है। ये बच्ची कभी एक दिन के लिए भी आती थी तो गुरुजी के पास अवश्य ही जाती थी। एक बार जब गुरुजी के पास आई और उसका प्रोग्राम था गुरुजी से मिलके और मैं सीधे एयरपोर्ट चली जाऊंगी। आपको पता है इंटरनेशनल ट्रैवल में कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना होता है। बच्ची ने जब गुरुजी से आज्ञा मांगी कि गुरुजी मेरी फ्लाइट है तो बैठ जा। अब बच्ची तो परेशान, गुरुजी ने तो कह दिया कि बैठ जा, मैं अगर 3 घंटे पहले नहीं पहुंची तो मेरे को चेक इन नहीं करने देंगे, मेरे को जाने नहीं देंगे, मेरी अमेरिका की फ्लाइट छूट जाएगी। गुरुजी ने उस बच्ची को शायद 1.5 या 2 घंटे बैठाए रखा वहीं पे और उसके बाद कहा ठीक है अब जा। एंड क्या आप विश्वास करेंगे, जब बच्ची एयरपोर्ट पहुंची तो पता चला कि उसकी फ्लाइट 2 या 3 घंटे डिलेड है। यानी कि उसका जब प्रॉपर चेक इन का टाइम आया तभी गुरुजी ने उसको एयरपोर्ट पहुंचने की आज्ञा दी और परमिशन दी। और गुरुजी को सब पता था, वो एक ऐसे अंतर्यामी है, सारे ब्रह्मांड की सूचना, सारे ब्रह्मांड के कार्यकलाप और दिव्य दृष्टाएं कि उनको दिखाई देता है।
ये प्लेन 2 घंटे बाद उड़ेगा, 3 घंटे बाद उड़ेगा। और कई बार ये मैं नहीं, आप में से बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। जब गुरुजी छोड़ते थे और आपको किसी जगह जाना बड़ा जल्दी होता था, तो शायद आपने खुद देखा होगा, खुद ब खुद अपने आप। और मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस तो कोई मदद नहीं करती, सारी लाइटें ग्रीन होती चली जाती थीं। और जो रास्ता आप 1 घंटे में तय करते थे, वो शायद 40 मिनट में तय करते थे। जो रास्ता आप 2 घंटे में तय करते थे, वो आप शायद 2 घंटे में तय करते थे, शायद डेढ़ पौने 2 घंटे में तय कर लेते थे। तो इस प्रकार से गुरुजी की जो मेहर थी, मेरे ख्याल से हमेशा बनी रहती थी। और मेरे परिवार में तो गुरुजी की मेहर इतनी ज़्यादा रही है कि मैं इसके बारे में शायद कितने भी जन्म में भी चाहूँ तो उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा गुरुजी के प्रति। मेरी बड़ी लड़की जो कनिका है, वो जब छठे दिन उसके हुआ था, पैदा होने के छठे दिन ही गुरुजी स्वयं जलंधर आए थे हमारे घर और उसको कहा था बच्ची को लाओ, और गोदी में लेके उसको ब्लेस किया था 6वें दिन। मेरे ख्याल से उसके बाद से एक न एक उसके साथ ऐसी घटनाएँ घटित होती आई हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा रही हैं। यामिनी मेरी जो छोटी बेटी है, उसके साथ भी एक के बाद एक घटना मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल पे लोगों के साथ शेयर की थी। मेरी वाइफ नूपुर और उनकी मदर को हमेशा गुरुजी खूब ब्लेस करते थे, खूब मानते थे, और कई ऐसी चीज़ें इनकी मदर की बताते थे, जो शायद मेरी वाइफ को भी नहीं पता थी। और सबसे बड़ी कृपा और मेरे ख्याल से हम लोग को एक जोड़ने का जो ज़रिया बनाए मेरे माताजी और पिताजी श्री प्रकाश सिंह और मेरी माताजी सावित्री सिंह। उन्होंने ही सबसे पहले गुरुजी को हमारे परिवार में दर्शन किए, उनके शरण ली और हम सबको उससे जोड़ा। मैं चाहूँगा कि गुरुजी की कृपा इसी प्रकार से हम सभी पे बनी रहे और इसी प्रकार से गुरुजी की मेहर और दिशा निर्देश जी किस प्रकार से जीवन में यापन करना है, जीवन का हमारे क्या दर्शन है, वो बना रहे और गुरुजी हमेशा हम सभी को रास्ता दिखाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और साथ संगत आपने जो मेरे को ये मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्राना। थैंक यू। Jai Guruji, Pankaj Uncle ji, thank you so much. It was very pleasant to listen all those satsangs live from you and your experiences as well as others' experiences. It is really refreshing for all of us. And now I would like to invite Usha Singh Aunty ji to share her analysis on the chapter and her experiences as well. Jai Guruji, Usha ji, over to you. Thank you. जय गुरु जी, थैंक यू सो मच उदय। आपका भी इंट्रोडक्शन मैं करा देती हूँ। आपने सबका इंट्रोडक्शन कराया है। फॉर ऑल द संगत जो जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि उदय भानु इज़ अ रिलेटिव ऑफ राहुल अंकल ऑल्सो, एंड उदय भानु ऑल्सो लिव्स इन सियाटल, and he's such a big devotee, and actually I have learned a lot from seeing his devotion. इतना सौम्य और इतने क्वाइटली जो डिवोशन इनका है और इतना गहरा है कि मतलब इट्स अमेजिंग। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने आज जो जोड़ा है वो चुन चुन कर लोगों को जोड़ा हुआ है। और थैंक यू सो मच उदय भानु, आप कितने सालों से गुरुजी की सेवा में लगे हैं और किस तरह से, और गुरुजी आपको यूं ही शक्ति देते रहें और आपकी सेहत बनाए रखें और आप ऐसे ही औरों को भी जोड़ते रहें, क्योंकि इतने अच्छे इनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं बहुत छोटा सा उदय भानु, क्योंकि गुरुजी ये जो ख्याल डालते हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस जो उदय भानु अंकल के साथ हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ। जब शुरू में गुरुजी निवास में यहीं पर इसी घर में गुरुजी ने की बहुत मेहर थी। जब हमको सिंगापुर से वापस भेजा तो उन्होंने कहा जा उठे जाके गुरुजी के बारे में बता लोगों को, गुरु हैं कौन। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि उनका क्या प्लान है। एंड ही जस्ट वांटेड द सत्संग टू हैपन इन सियाटल।
अब उसमें उदय भानु joined one of the few earlier ones, और वो आते थे और केवल ध्यान में बैठते थे, क्योंकि ही हैड मेट गुरुजी, वो मिले हुए थे और राहुल अंकल के साथ और साहू अंकल के साथ उनका संपर्क था, तो दिल्ली में ही हैड विजिटेड हिम फ्यू टाइम्स। तो वो आके चुपचाप ध्यान में बैठते थे, क्योंकि एमपीजी एज यू नो कि वो बहुत डिसिप्लिनेरियन है, और एकदम स्टिलनेस रहती थी, मतलब एक कोई चू भी नहीं कर सकता था संगत में। तो ऐसे ही चल रहा था, वो ध्यान में बैठे थे। और उसी दिन सुबह की बात है, थर्सडे था, और मेरा फोन, आईफोन छोटा से जो हुआ करता था, 2008 की बात रही होगी ये, और वो मेरा काम नहीं कर रहा था। तो मैंने एमपीजी से कहा कि अभी तो टाइम है, नीचे डाउन द हिल हमारी वो टी मोबाइल की शॉप है, तो प्लीज़ इसको आप ठीक करा के ले आइए। तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अब इस समय मैं नहीं जाऊंगा। तो ही डिडंट गो। तो मैं कंप्लेन करने लगी, एंड दिस प्रूव्स दैट गुरुजी लिसन्स ईच एंड एवरीथिंग। तो उसी दिन ये बैठ के ध्यान कर रहे थे, संगत शुरू हो गई थी, शाम के टाइम था, और अचानक he came in the kitchen and he told me कि आंटी आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा शायद किसी ने बताया हो, तो मैंने कुछ कहा नहीं। अचानक ही उन्होंने कहा कि गुरुजी ने इनसे कहा है कि उषा आंटी का फ़ोन ख़राब है, हो गया है, और जा करके एक वाइट कलर का फ़ोन इनके लिए लेके आओ। And when he said that, I was stunned. And I said, I'm very happy that गुरुजी का आपका इतना डीप कनेक्शन है, उन्होंने आपको मैसेज दिया है, और बहुत सही मैसेज है, क्योंकि अक्सर हम किसी को एनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम नहीं कौन क्या मैसेज दे दे, पर उनका इतना जेन्युइन था। पर आई टोल्ड हिम कि नहीं, आपको मालूम है एमपीजी तो कभी भी ये अलाउ नहीं करते हैं कि हम कोई भी गिफ्ट किसी से लें या कुछ करें, तो आई एम सो सॉरी, हम नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा ये मेरा नहीं है, ये गुरुजी का हुक्म है, एंड उन्होंने मुझसे कहा है, तो मुझे तो ये करना ही होगा, चाहे आप उसको फेंक दीजिए, जैसा भी आपका मन हो। एनीवे, उन्होंने बात करी एमपीजी से, और एमपीजी भी समझ गए कि बहुत ही जेन्युइन है, और वो नेक्स्ट डे ले करके आए, उन्होंने रखा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत कम इस तरह की चीज़ें हुई हैं हमारे सामने, कि किस तरह से गुरुजी ने अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाई है, कि जो हम बातें करते हैं वो गुरुजी हमेशा सुनते हैं, और गुरुजी किसी को माध्यम बनाते हैं, जो वेसल तैयार होता है। जैसे आप रेडी होते हैं, जब आप कनेक्शन गुरुजी से कहते थे, गुरुजी जैसे डायरेक्ट कनेक्शन, तार से तार जोड़ो, जब आपका उस स्थिति में आप जाते हैं, जब आप एकदम ध्यान नस्त हो जाते हैं, और गुरुजी के साथ आपको जो कनेक्शन होता है, उस समय जो वो आपको बताते हैं, वो एकदम उन्हीं की ब्लेसिंग्स होती है। सो ये मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस था। आई वांटेड टू इवन शेयर लिटिल बिट अबाउट उदय भानु। थैंक यू सो मच अंकल। और थैंक यू। अब मैं मैं इनकी तो बुक इतना पर जाती इतना हूँ। सॉरी आंटी जी टू इंटरप्ट यू। आई एम रियली प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ द सियाटल संगत, जो आपने चलाया शुरू से लेकर अभी तक, इतना बढ़ाया, और आपके बिना सियाटल संगत कभी हो ही नहीं सकता है और बढ़ भी नहीं सकता है अगर आप नहीं चलाते तो। तो थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर गिविंग मी चांस अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस सियाटल सत्संग। जय गुरु जी। उदय भानु, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बट मैं एक चीज को स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि दिस इज ऑल गुरुजी डूइंग, बिकॉज गुरुजी खुद चुनते हैं ईच सोल, जो आती है गुरुजी खुद डिजाइन करते हैं, और टाइमिंग वो डिसाइड करते हैं, और वो चाहे हम रहें ना रहें, कहते हैं ना गुरुजी तो अपने आप ही सब कुछ कराते हैं, हम लोग बस हाथ पैर चलाते हैं, और गुरुजी की ही शक्ति है जो ये सब कुछ पूरी कायनात पर, सारे वर्ल्ड में कितनी संगत हो रही है, कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये गुरुजी की शक्ति है। हिज डिवाइन पावर इज जस्ट everywhere. So thank you so much. Or I must get back to this book. It is so beautiful. Raul uncle, I must congratulate you
कि आपने इतनी सुंदर किताब लिखी है और एक बार पढ़ने लगो तो फिर रखने का मन नहीं होता है। एंड थैंक यू टू उदय भानु कि आप मेरे लिए लेके आए वहाँ से, कि हम इसको दिया और हम सब इसको इतने ब्यूटीफुली तरह से पढ़ रहे हैं। और मैंने सोचा नहीं था कि आज मुझे गुरुजी इस प्लेटफॉर्म में लाएंगे। और बहुत ही मतलब एक एक चीज़, स्पेशली जो आज का की रीडिंग है, जो चैप्टर है, इट टचेस माय हार्ट। क्योंकि जैसे कि अभी पंकज जो मेरे देवर भी हैं और इतने इतने बिग डिवोटी ऑफ गुरुजी, एंड चाचा जी के बेटे हैं, और चाचा जी कि तो मैं जिंदगी भर कितने जन्मों तक ऋणी रहूंगी कि उनकी वजह से हम गुरुजी से मिल पाए। सो चाचा चाची आर लाइक द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट लव्ड हमारी लाइफ में। जो उन्होंने किया है वो तो किसी जन्म में हम उसका वो कुछ ऋण उतार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु जी को से के सामने ले गए हमें, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और पंकज के साथ जो मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मतलब इज सच अ सिंसियर और इतने डिवोटेड, और उनकी हिंदी आप सबने सुनी है, कितने ब्यूटीफुली उन्होंने सारी चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करी हैं। और एक एक शब्द मैं देख रही थी कितने उच्चारण में हो, चाहे उनकी जो चयन है शब्दों की हिंदी में, वो सारी चीज़ें दिखलाती हैं कि जो हमारा पूरा परिवार जो इलाहाबाद में जो आप कहते हैं उसको कि उनका उसका नाम बदल गया, पर मैं तो हमेशा इलाहाबादी ही हूँ और वहाँ की हिंदी बहुत ही फेमस है। तो थैंक यू सो मच पंकज फॉर योर सच ब्यूटीफुल रीडिंग, और रीडिंग के साथ साथ जो आपने एक्सप्लेन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड राहुल थैंक यू वेरी मच भाभी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया। एंड राहुल अंकल, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे आपने पेज 75 में जो लिखा है, द प्रोफाउंड स्टिलनेस, and I believe 100%, and I have experienced that myself, and I connect to that what you have written, and most of us do that, because until your mind and body is still, you cannot understand divinity. जब तक आपका स्थिर, एक योग सूत्र में भी लिखा है, एक उसमें श्लोक है जो एमपी जी अक्सर बोलते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये है, स्थिर तन स्थिर मन जब तक नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो दैट इज द प्री रिक्विजिट, और यहाँ पर आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है जिस तरह से हेल्दी माइंड इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ हेल्दी बॉडी, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे किसी के बस में नहीं है। हमारी लाइफ में जब इस तरह से महादेव के रूप में जब हमारी लाइफ में गुरु आते हैं, वो एंटर करते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। अगर वो चाहते हैं, वो एक नज़र से, जैसे गुरु जी आके बैठते थे अपने आसन में, तो एक नज़र डालते थे और हम सबका माइंड स्टिल हो जाता था एकदम। जो हम इतने बैगेज लेके आते थे घरों से, और इतनी लिस्ट हमारी रहती थी कि अगर मौका मिलेगा तो हम ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, सब कुछ डिलीट हो जाता था। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं सब कुछ भूल जाती थी, और आप वहाँ पर आपकी कोई मूवमेंट ही नहीं होती थी बॉडी की। आप सब जो वहाँ गए हैं, हम सारे वहाँ गए हैं जितने लोग हैं इस प्लेटफॉर्म में, इस सेशन में जिन्होंने अभी किया है, चाहे वो पंकज हो, राहुल और भानु हो, कि वहाँ पर इतनी जगह भी नहीं होती थी कि हम कभी इधर बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं, पैर फैला लें। इतने कम जगह में इतने लोगों को फिट करना, और ये कैसे हो सकता है कि 1-2 घंटे नहीं, 5-6 घंटे विदाउट मूवमेंट आप चुपचाप बैठे रहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल।
आप कहीं जमीन में बैठिए, इतनी देर तक आप बैठ नहीं पाएंगे, थोड़ी देर में आप थोड़ा उठेंगे, पैर फैलाएंगे, ये है वो है. So that was the divine power of Guru. That was just, it was just immersed in that surrounding, and we all were affected with that power. So मैं कहती हूँ कि जो भी होता था वहां पर, सब कुछ गुरु जी की वजह से ही होता था. चाहे हमें कुछ समझ में आता था, या जो हम समझते थे उसको पूरा जीरो कर देते थे गुरु जी, हमें फिर से रीलर्न करना पड़ता था. कितनी चीजें हम अपनी धारणाएं लेके गए हैं वहां पर, और गुरु जी ने उसको एकदम पलटा कर दिया. मैं खुद अपना बताती हूँ, जो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ कि by the grace of Guruji, the devotees and non-devotees are guided to a degree of stillness, and in turn helps accelerate the healing of the bodily and mental ailments. So, by the only of Guruji grace, everything used to happen. और मैं अपनी बेटी का, जो अभी पंकज ने इतने ब्यूटीफुली बताया और समझाया, और किस तरह से सारी चीजें, all the blessings, all the healings that he had shared, कितनी अच्छी तरह से कि पहले स्पून से, पान के पत्ते से, या तो तांबे के लोटे से, और कभी कभी गुरुजी अपने हाथों से जब रोटी देते थे, या रुद्राक्ष की माला शुरू में अर्लियर डेज में गुरुजी जल में डाल देते थे, उसको प्रसाद बना देते थे, और वो हीलिंग करती थी. पानी से ही हील कर देते थे गुरुजी. तो पानी तत्व बहुत ही गुरुजी के लिए इम्पोर्टेंट है. गुरुजी जब बाद में जिस तरह से वो तांबे के लोटे में कहते थे जल भरो, वो जल जो है उसी से गुरुजी हील कर देते थे, एंड वो प्राणदायक. तो किस तरह से गुरुजी ने मेरी बेटी को भी वो जो एक्सपीरियंस जो हुआ, ये मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब गुरुजी ने ब्लेस किया, वो तो बाद में हम जब सिंगापुर गए और तांबे का लोटा हमने यूज किया करीब 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद. पर I remember it was December 28th, 1998. और जो मेरी बेटी स्टेरॉइड, नेबुलाइजर और इनहेलर पर हुक थी, every few minutes, few hours I would say, every 2 hours she had to use the inhaler. और वो हमेशा एक कहते हैं ना सेफ्टी ब्लैंकेट की तरह अपने साथ रखती थी. अगर भूल जाते थे हमें वापस जाना पड़ता था. तो वो गुरु जी के दरबार में जिस दिन चाचा जी हम सबको ले गए, वो लास्ट पफ उसने कार में यूज किया था इनहेलर का. और गुरुजी ने जैसे ही ब्लेस किया और हाथ उठाया, दाहिना हाथ, उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया सारी चीजें, उन्होंने हाथ उठाया और वो कहते हैं कल्याण कर देता. तो देखिए गुरुजी का शब्द, मैं ये पॉइंट करना चाहती हूँ कि वो तांबे का लोटा और वो जो ओम था, वो हमने बाद में जाके पहना, बाद में उसने यूज किया वो, पर वो तो उसी क्षण ही गुरुजी ने उसको क्योर कर दिया. दैट इज द पावर ऑफ डिविनिटी. हम कभी सोचते हैं कि हम जब ये करेंगे, जल रखेंगे, हम पिएंगे, इससे ब्लेसिंग होगी, पर गुरुजी doesn't need any outward things. He just looks at you, he just says a few words and you heal. तो ये बहुत दिनों बाद मुझे समझ में आया. पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दिन बाद समझ में आया कि गुरुजी can heal anything right away. We don't need anything, and he proved that with my daughter when it happened, and I'm utterly grateful कि कितना जो उसकी सफरिंग थी, और केवल आस्मा ही नहीं था, उसको और भी बहुत चीजें थी. तो गुरुजी केवल कहने मात्र से ही ठीक कर देते थे. और जिस तरह से यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, द अनकंडीशनल अफेक्शन, जैसे अभी पंकज ने भी इसको कितनी अच्छी तरह से समझाया है, राहुल ने कितनी ब्यूटीफुली ये अपने थॉट्स लिखे हैं, और you know the pattern of the words he has used, the way, the flow of language he has used, it's so beautiful.
कि you can connect to this each chapter what he has healing का जिस ये chapter अभी जो हम सब ने सुना है और पढ़ा है अभी पंकज के थ्रू, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हीलिंग वाज नंबर 1 फॉर गुरुजी। जैसे कि अभी इसमें लिखा है ना कि जब तक आपका माइंड नहीं हील होगा, आपकी बॉडी नहीं हील हो सकती है, और जब तक आप खाली होके नहीं जाएंगे, जब तक आप विश्वास, क्योंकि मुझे याद है चाचा जी जब हमें ले जा रहे थे, हमें कुछ भी नहीं मालूम था, हमने तो अपना सोचा हुआ था कोई बुजुर्ग से, बुढ़े से होंगे गुरुजी और गेरुआ वस्त्र पहने होंगे। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि गुरुजी इस तरह के होंगे। तो पूरे रास्ते गुरुजी के बारे में चाचा जी ने कुछ नहीं कहा था, और चाची जी ने मेरे से कहा था कि उषा बस तुम विश्वास लेके जाना, फेथ के साथ जाना। और मैं सोची थी फेथ मैं कैसे पहले करूं, मैंने तो देखा भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड कि मैं फेथ कैसे पहले कर लूं। पर गुरुजी के जब वहां एंटर करे एम्पायर स्टेट, इट वाज जस्ट लाइक सब कुछ उल्टा पाया वहां पर। जो धारणाएं थी सब कुछ उल्टी थी। वहां पर गुरुजी एकदम हैंडसम प्रिंस की तरह बैठे हुए हैं, और किस तरह से गुरुजी शब्द बज रहे हैं जो मुझे मालूम ही नहीं था, पंजाबी नहीं आती मुझे, कुछ नहीं आता था। सब कुछ जो मेरी धारणाएं थी वो सब कुछ गुरुजी ने बदल दी उसी रात। मैं समझ गई कि यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। एंड मेरे मन में चल रहा था कि ये गुरुजी इतने यंग हैं, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। एंड जो दिमाग में चल रहा था, गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया और उन्होंने राइट अवे कहा कि तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड दैट रियली स्टार्टेड माय फेथ बिकॉज आई थॉट इनको कैसे पता चला है। सो दैट वाज द फर्स्ट शिफ्ट। और गुरुजी ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस देते हैं, उसके बाद आपको फेथ होता है। मैं तो ऐसे ही गई थी विदाउट फेथ, सारे रास्ते सोच रही थी, पर राइट अवे गुरुजी अंडरस्टूड दैट आई नीड दैट, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड there was no turning back. And thank you to Chacha ji and Chachi ji for that night that changed our whole life and that changed our daughter's life. जिस तरह से अभी बताया है पंकज ने कि उसकी जर्नी गुरुजी के साथ, मैं तो तब मुझे विश्वास हुआ जब वो ठीक हो गई, पर उसको उसी क्षण विश्वास था। जैसे ही उसने गुरुजी को देखा, उसने मन में सोचा ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प मी, तो उसका फेथ उसी समय हो गया था। सो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि जब आप पूरे फेथ के साथ या आप सरेंडर होके जाते हो, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग राइट अवे आपको लग जाती है। दैट इज आंखों देखा मेरे साथ जो हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ। एंड एवरीथिंग दैट इज रिटन इन हियर, किस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के जैसे ये सारी चीजें हैं, पर गुरुजी तो जैसे भी पंकज बता रहे थे कि अगर आपकी डायबिटीज है तो वो आपको जलेबियां या लड्डू खिला के ठीक कर देते थे। और सो गुरुजी का तो बिकॉज हिज आई फॉर मी ही इज महादेव, बिकॉज मैं वहां बैठ के सोचती थी कि गुरुजी हु आर यू, दैट वाज माय ओनली क्वेश्चन, क्योंकि बात नहीं हो पाती थी, गुरुजी किसी से बात नहीं करते थे। और मैं सोचती थी कि ये सरियल है, जिस तरह से वहां बैठ के मैं देखती थी लोगों के हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो जाती थी समोसे से, और डायबिटीज ठीक हो जाती थी, ये मीठा खिला खिला के गुरुजी इतनी बार देते थे। और किस तरह से इनफर्टाइल लेडीज आती थी जिनके ट्यूब्स टाइप मतलब ब्लॉक रहते थे, ओवरीज एक होती थी, तो ये सब कैसे ठीक हो जाता है। तो मेरे मन में आ रहा था कि ये कोई शक्ति नहीं है, दिस इज बियॉन्ड समथिंग। एंड गुरुजी ने जैसे एक मुखैटा पहना हुआ है, ही हैज दिस काइंड ऑफ फसाद इन फ्रंट ऑफ हिम,
एंड हम लोगों के सामने ये जो आवरण होता है ऐसे डाला हुआ है, और देयर समथिंग बिहाइंड दैट, एंड आई वांटेड टू नो गुरुजी। तो जैसे इस बुक में लिखा हुआ है कि हाउ ही मैनिफेस्ट थिंग्स एंड हाउ ही एक एक डिवोटी का उनको पता रहता था, सर्वदृष्टा या सर्वशक्तिमान या अंतर्यामी, उनको सब कुछ पता रहता था कि कौन क्या सोच रहा है। तो मेरी ये सोच थी कि गुरुजी आई वांट टू नो द रियल यू, आप कौन हैं गुरुजी। और बचपन से मैं महादेव की पूजा करती थी, और मैं बचपन से ही उनसे कहती थी आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो वो मेरे मन में लगातार होता था। और ये भी मैंने सुना था वो वैद्यनाथ हैं और वो बीमारियां ठीक कर देते हैं, उनके हाथ में जीवन मरण है, वही जीवन दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। और वो कैसे यम से भी खींच के ले आते हैं अपने भक्तों को। तो मैं सोचती थी गुरुजी ये है कौन, एंड दैट्स हाउ गुरुजी न्यू एवरीथिंग। एंड उन्होंने मेरे से कहा तू कल मंडे था उस दिन, संगत एम्पायर स्टेट में होती थी, उन्होंने कहा तू बड़े मंदिर चली जाओ, जाके बड़े मंदिर में दर्शन करके आ। एंड गर्मी का दिन था, वो सावन का ही सोमवार रहा होगा, जुलाई का महीना था। और मैं जब गई वहां पर कोई नहीं था, माली भैया ने खोला, मैंने जैसे ही वो फाउंटेन वाले शिव जी हैं उनको प्रणाम किया, और जैसे ही मैं खड़ी हुई तो वो मूर्ति जो है वो आधे गुरुजी आधे शिव जी, एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग and I got my answer. There was no questions after that. I knew he was my Shiva, that I have been praying to him, and he is the ultimate. उनके ऊपर कोई भी नहीं है, तो मेरे लिए nothing to ask anymore, because I needed his darshan and I got the darshan. तो इससे बढ़ के ये जीवन उन पर समर्पण, और उसके बाद इस लाइफ में आने का मकसद यही होता है कि आत्मा को परमात्मा का मिलन होना चाहिए। आप यू मीट योर क्रिएटर, एंड इन दिस लाइफ गुरु जी की कृपा से और माध्यम से चाचा चाची के हम किस प्रकार उन तक पहुंच पाए, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और क्या बचा है जीवन में, जब आप परमात्मा से, महादेव के साक्षात दर्शन, और किस प्रकार से अभी भी गुरु जी तो नहीं है, पर अभी भी कितने कितने कैंसर सियाटल की संगत के गुरुजी ने ठीक करे हैं, चाहे वो ल्यूकीमिया हो, 36 ईयर ओल्ड पर्सन, और या तो 1.5 साल का बच्चा हो, या कितनी इनफर्टाइल लेडीज जिनके 10-15 साल शादी के हो गए, बच्चों के लिए तरस रही थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप केवल गोद ले लीजिए। वो गुरुजी की फोटो से, उनकी शक्ति से कैसे ये चीजें होती हैं। तो इस बुक में जो जो लिखा है कि वो किस तरह से गुरुजी अपने संगत को ब्लेस करते आ रहे हैं, एंड ये शक्ति गुरुजी की, उन्होंने कहा था मैं नहीं रहूंगा पर मेरे दर्शन हुआ करेंगे चांद में, सितारों में, सूरज में, और वो वही हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, उनकी डिवाइन जो फ्रेग्रेंस आ जाती है अचानक ही आप कुछ सोचते हो, अचानक ही वो बात होने लगती है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। आज का दिन भी कोइंसिडेंस नहीं है कि किस प्रकार से पंकज के साथ मेरा भी इस समय है और उदय भानु का भी है, एंड राहुल, बिकॉज थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू all this is happening, and we are transported again to Empire State with Guruji. ऐसा लगता है कि गुरुजी बैठे हैं और वो सुन रहे हैं और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमेशा ही रहते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि स्पेशली इन दिस बुक राहुल, आई वुड से कि ये बुक नई संगत के लिए, जो नई पुरानी कोई नहीं है, पर द पीपल हु हैव नॉट सीन गुरुजी, हु आर जस्ट कनेक्टिंग नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स, उनके लिए इस तरह की बुक बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि चाहे आप कितना भी लोगों को बताते रहो, पर जब तक आपके हाथ में इस तरह का कुछ प्रूफ ना हो, और इसमें आपने इतने अच्छी तरह से सारे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं और कैसे क्या हुआ था, जब लोग ये पढ़ते हैं तो उनकी श्रद्धा
और भी बढ़ जाती है और उनका फेथ एकदम बढ़ जाता है. सो यू हैव डन अ ब्यूटिफुल जॉब ऑफ दिस सर्विस. ये सेवा जो है आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है. और कितने लोग पूछते हैं आंटी गुरुजी के बारे में बताओ या वो क्या क्या करते थे. तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दिस बुक फॉर देम टू रीड ऑल्सो and understand who is Guruji, because not many I shouldn't say that, but कई की किताबें ऐसी हैं जो आपको सही ढंग से गुरुजी के बारे में उनके उनकी दिवत जो उनका दिव्य उनकी एट्रीब्यूट्स थी या उनकी जो विशेषताएं थी वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से आपने यहाँ पर लिखा हुआ है. और एक एक चीज़ जैसे जैसे वहाँ होता था सब कुछ उसका विवरण बहुत ही अच्छी तरह से करा है. सो इट इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. और अगर समय है तो मैं एक सत्संग छोटा सा करना चाहती हूँ. ये है MP जी का ही बताती हूँ, मेरे हस्बैंड का, कि किस प्रकार से गुरुजी जीवन दान कोई भी नहीं दे सकता है. जीवन दान केवल महादेव के हाथ में होता है. और आप सब ने शायद सुना होगा, पर बहुत आवश्यक है गुरुजी को के बारे में. अगर ये हम हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आई एम अ फर्स्ट हैंड विटनेस टू इट, क्योंकि मेरे सामने ही ये हुआ था. एक बार गुरुजी के जब हम सिंगापुर में थे तो हमने कभी भी दिवाली नहीं मनाई थी इंडिया में. और मेरा मन था कि दिवाली की छुट्टियों में मैं अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ प्रयागराज में जाऊंगी और उदय मेरा छोटा बेटा है उसको वहाँ पर दिवाली उसके साथ हम सारे मनाएंगे मिल करके. और गुरुजी ने जब उनके पास गए तो गुरुजी ने कहा कि कदों आई है. सो आई सेड गुरुजी ऐसे जाना है. एंड ही सेड और गुरु के साथ नहीं मनाएगी दिवाली. एंड आई वाज इन अ फिक्स. मैं चुप हो गई. और फिर गुरुजी ने कहा जाके लंगर खा ले. तो मैं लंगर खाने लगी, पर दिमाग तो दिमाग है, जैसे मैंने कहा हमेशा घूमता रहता है. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अब मैं अपने इन लॉज को कैसे मना करूंगी. गुरुजी वाज सो कंपैशनेट. जो इस बुक में आपने लिखा है अबाउट हिज कंपैशन, गुरुजी अपने डिवोटीज के प्रति इतने ज्यादा वो प्रेम से और सद्भावना और इतना उदारता थी उनके मन में. उन्होंने कहा कि तेरा बहुत मन है तो ऐसा कर, तो छोटी दिवाली अपने ससुराल में मना ले इलाहाबाद में, पर बड़ी दिवाली गुरु के नाल मनानी है. एंड it just took us, everything had to be changed. MP जी ने रिजर्वेशन दूसरा किया. फिर हम लोग गए. we barely stayed for 12 hours, क्योंकि सुबह ट्रेन पहुंचती थी 7 बजे और फिर हमें रात की 7:30, 8, 9 बजे फिर ट्रेन पकड़नी थी वापस आने की. और उसी के दौरान MP जी बहुत बीमार हो गए. समथिंग एग्रीवेटेड हिज एलर्जीज और उनको थोड़े बीजिंग होने लगी. डॉक्टर को भी दिखाया और सब लोग कहने लगे कैसे जाओगी, पर मुझे गुरुजी पर विश्वास था. उन्होंने कहा इतने मनानी है बड़ी दिवाली. मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वापस जाना है गुरुजी के पास. एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज आई डिडंट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस. और वहाँ पहुँचे और वो सब काफ़ी डिटेल है, वो शॉर्ट में बताती हूँ. उनको एडमिट होना पड़ा और उनकी 90% लंग कोलैप्स हो चुका था. द हीलिंग पावर ऑफ गुरुजी. अब वो दिवाली का दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. एंड मैं सोच रही हूँ MP जी कहते हैं तुमको गुरुजी ने कहा था दिवाली में उनके पास रहना तो तुम चली जाओ उनके पास. एनीवे वी वेंट. गुरुजी के दिवाली के दिन सब आराम से सारे लोग बैठे हुए थे, एकदम कंप्लीट साइलेंस. एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल. बिल्कुल जगह नहीं थी चलने की. किसी तरह से मैं पहुंच गई गुरुजी के सामने. जैसे ही प्रणाम किया गुरुजी ने राइट अवे सब कुछ बता दिया और मुझे कहा इत्थे ही बैठ जा. और सेवादार को कहा एक प्लेट में लंगर ले आ. लंगर खिलाया मुझे मेरे बेटे को और एक रोटी उन्होंने मंगवाई MP जी के लिए किचन से. उसको ब्लेस किया, हाथ में लिया और मुझे कहते हैं जाके तुरंत खिला दे. अब सोचिए वो ICU में है और मुझे गुरुजी कह रहे हैं जाके तुरंत खिला दे और वो रात के 10 बज चुके हैं.
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी हॉस्पिटल में आप किसी को 90% लंग कोलैप्स है, कैन यू जस्ट वॉक इन विदाउट एनी इंटरप्शन एंड टेक आउट द मास्क एंड फीड? ये कैसे हो सकता है? आई एम अ विटनेस टू दैट। जब गुरुजी कहते थे ना, वो अपने आप कराते थे एवरीथिंग। मैं लेके गई एंड आई वाज fearless, मुझे कोई डर ही नहीं था। जैसे गुरुजी was just controlling everything. I was walking through and all the doors were opening and nobody was asking me anything. I just went in and I just took off his mask. ऑक्सीजन का जो लगा था, मैंने कहा आप इसको खा लीजिए, ये गुरुजी ने कहा आप इसको खाएंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। That was the power of Guruji. He ate the whole roti. कोई नहीं था आसपास। गुरुजी वैसे ही व्यवस्था बना देते हैं, सबको हटा देते हैं। मैंने जैसे ही उनको मास्क लगाया, उस समय नर्सेस आने लगी एंड आई सेड गुड नाइट जय गुरुजी। अब जय गुरुजी तो नहीं होता, तो मैंने एमपी जी को गुड नाइट कहा बस गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं सीधे घर चली आई। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट बैक, ही वाज सिटिंग डाउन एंड डॉक्टर्स वर सेइंग ये कैसे हो सकता है? और वहाँ दिल्ली में इतने पटाखे उस समय होते थे, धुआं पूरा भरा हुआ था हॉस्पिटल में। हाउ इज इट पॉसिबल? ये गुरु की कृपा, व्हेन ही डज एनीथिंग, वो अपने आप अरेंज कर देते हैं एवरीथिंग। सो ये जो हीलिंग वाला, ये आपने कंपैशन एंड हीलिंग, आई हैव बीन विटनेस टू एवरीथिंग। सेम थिंग, ही हैड सेप्टोसीमिया, उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके थे यहाँ सियाटल में, एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, कहा था कि उनका हार्ट भी फेल हो गया था। वो तो इत्तेफाक से वो हार्ट डॉक्टर वहीं चेक कर रहा था, उन्होंने उनको रिवाइव किया। एंड गुरुजी कॉल्स एट 4 o'clock in the morning and he tells me कि आंटी अंकल के मुंह में थोड़ा हल्दी और नमक जाके चुटकी भर डाल दे। मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ भी नहीं, मुंह से कुछ नहीं दे सकती हूँ, वहां पे इतनी नर्सेस खड़ी रहती हैं गुरुजी, आई कैन नॉट डू। कहते नहीं, चुपके से। आई अंडरस्टूड गुरुजी विल मेक इट हैपन। आई जस्ट वेंट इन द मॉर्निंग, और जैसे मैंने बताया, सारी नर्सेस वहां से चली गईं आईसीयू में, और मैंने उनका मास्क हटाया और मैंने कहा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, आप बिल्कुल ठीक होंगे। I just put in his mouth and I put the back, and that was the turning point. जिस समय गुरुजी 4 बजे बात कर रहे थे फोन पर, मैं घर पर थी अपने बेटे के साथ। मेरी तीनों बेटियां हॉस्पिटल में थी वहां पर। वो कही थी माम, उस समय 4 बजे पूरी रूम से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी, और अजीब सी दिव्यता दिख रही थी, जैसे एक रोशनी सी बदल जाती है। And they said, I knew no, Guruji will is helping dad and he's going to heal dad. ये कैसे चीजें होती हैं? गुरुजी वहां बैठे हैं एम्पायर स्टेट में, हम यहाँ पर हैं एमपीजी हॉस्पिटल में हैं। हाउ डज इट हैपन? ये मुझे संतोष देने के लिए शायद उन्होंने कहा कि तुम हल्दी ये डाल दो, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो वहां बैठे बैठे ही सब कुछ ठीक कर देते हैं। He is लॉर्ड शिवा, तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो किस तरह से शिव पुराण में मैं पढ़ती हूँ, किस तरह से वो जीवन दान दे देते हैं, किस तरह से वो कहते हैं, हर एक अध्याय में वो कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, और गुरुजी भी अपने संगत के अधीन थे। इतना प्रेम कहीं भी नहीं देखा आज तक। ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको कुछ देना नहीं होता है, केवल देते हैं गुरुजी, ब्लेसिंग देते हैं, आपको लंगर खिलाते हैं। ऐसी जगह जहां से आपको घर वापस जाने का मन ही नहीं होता था। किताबों में बचपन में पढ़ती थी कि स्वर्ग कोई जगह होती है जहां इतने अच्छा लगता है, ईश्वर की खुशबू आती है, वापस जाने का मन नहीं होता है। तो हम सब ने वो महसूस कर लिया है। वी हैव सीन दैट वाज स्वर्ग विद गुरुजी, जहां हर संगत छिपती थी कि हमें कहीं जाने को ना मिले, जहां जमीन पर हम बैठे रहते थे 5-5, 6-6 घंटे, कभी रात से सुबह हो जाती थी, और गुरुजी 4 बार लंगर खिलाते थे, फिर भी हम फ्रेश रहते थे, कोई नींद नहीं आती थी। दैट वाज ऑल गुरु कृपा। और इस बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है कि गुरुजी की जो हीलिंग पावर्स हैं, दैट इज द मेन थिंग।
गुरुजी पहले आपकी बॉडी स्वस्थ करते हैं, माइंड स्वस्थ करते हैं, फिर आपको दुनियावी चीजें और follows later. First is your healthy body and mind, and that is the most important. We realize now. शुरू में नहीं समझ में आती थी चीजें, और इतने अच्छी तरह से ये compassion, assuaging with compassion and healing, this whole chapter depicts, केवल ये तो मैंने अपना भूला, पर देखिए किस प्रकार से मिसेस आहूजा, जिनको हम सब जानते हैं, वो हमेशा पंचकुला में रहती थी और आती थी वहाँ पर, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो सियाटल संगत में भी 2 बार आई, और उन्होंने आकर के सियाटल संगत को पूरा बताया गुरुजी के बारे में, एंड वो गुरुजी ने उनको भेजा यहाँ पर। वो कहती थी कि गुरुजी कहते थे तू उठे जा सत्संग कर, कहती मुझे कोई सत्संग, दिस वाज इन 2008, फर्स्ट बर्थडे वी स्टार्टेड इन सियाटल, एंड गुरुजी ने उनको भेजा। सो गुरुजी जो चाहते हैं वो अपने संगत को भेज करके वो अपने आप ही सबको ब्लेस करते हैं। सो अमेजिंग टू हियर ऑल दैट। और गीतन ग्रेवाल, जितने भी सत्संग हमने यहाँ देखे, कर्नल चैटर्जी, लाइक गोइंग बैक अगेन, हाउ ही ब्यूटिफुली गुरुजी सुनवाते थे उनसे, और किस तरह से चपाती दे देकर गुरुजी, और कैसे चपातियाँ बढ़ जाती थीं, कई बार दिखाते हैं कि किस तरह से कम होती थीं, पर गुरुजी जब डालते थे तो और उसमें प्लेट में आने लगती थी। सो ऑल दीज आर हिज सुपर only Lord Shiva can give life, and I have witnessed in my own immediate family, and वैसे तो परिवार में जैसे पंकज ने कहा है कि हम we are very blessed, each one संगत member in सिंह परिवार, कि गुरुजी ने कितने लोगों को, and thanks to चाचा जी, he has taken so many of us to गुरुजी, and किस प्रकार से उनके थ्रू कितने लोगों की ऐसी blessings हो रही है, और amazing. Or I must stop now, otherwise once I start talking, I sometimes just there's so much to say about Guruji, क्योंकि कुछ शब्दों में गुरुजी को हम ढा ही नहीं सकते हैं। It is amazing experience, and we should be very very grateful कि हमें गुरुजी की शरण में इस जीवन में ये मौका मिला, and we are super lucky कि हमने दर्शन किए, उनके पैर छुए, उनके हाथ छुए, उनके हाथों से प्रसाद खाया। What else is needed now? हमें भगवान महादेव स्वयं सामने साक्षात, और अभी भी साक्षात वो सुनते हैं, कितनी बार हो चुका है, वो स्वयं आते हैं। We can feel his presence with his fragrance, with his healing power. It's so amazing. I must share this this will be last 100%. About Neetu, that we have been sharing कि वो मेरी डॉटर जिसके थ्रू हम जुड़े हैं, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उसके एंकल में। उसको 6 हफ्ते बिल्कुल ही उठ नहीं पाती थी, और आई यूज्ड टू गो एंड हेल्प हर, एंड ऑर्थोपेडिक, शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा कि 6 हफ्ते बाद हम देखेंगे। जब देखा, उसने कहा हील नहीं कर रहा है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, and surgery is very hard, और कोई गारंटी नहीं है। You know what happened? Some turn of events from her workplace, she was leading the doctors to Delhi. गुरुजी ने उसको बड़े मंदिर बुलाया, वो वहां गई, और वो सोचती है वो अपने काम से गई, गुरुजी ने उसको हील किया। After she came back, उसकी सर्जरी की डेट सेट थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा एक बार फिर हम करेंगे, स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन। सर्जरी से 1 दिन पहले उसने स्कैन किया। Guess what? She didn't need a surgery. गुरुजी ने ऑलरेडी उसको हील कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? This is गुरुजी is the महादेव, जो वैद्यनाथ, किस तरह से गुरुजी हील करते हैं। So thank you so much, and thank you so much, Raul, because of your book, that we can share all that again and again and experience and read so much about so much in here. And as I said, it is a big tribute to Guruji, and it's not about
just about experiences. What you have shared, भागवत गीता को लेकर के और पतंजलि योग सूत्र का और योग के बारे में and spiritual essence of Guruji, every chapter is so beautiful. Thank you so much. Jai Guruji. Thank you, multilingual group, and Vasan uncle. Thank you so much for arranging this and inviting me also. Jai Guruji. Jai Guruji, Usar Auntie ji. Thank you so much for giving your thoughts and Sangats, also sharing the Sangats, which is not there even in the chapters. Refreshing all of the satsang which has been shared by Pankaj uncle. And I'm really thankful for taking time and being so late in the night and sharing your satsang and praising Guruji actually, and sharing your opinion about the chapter and the book which is written by Rahul uncle. Thank you so much. And also I would, because you all expressed your feelings, like who introduced you to Guruji, even you and Pankaj uncle. So I am also like thankful to Urvashi, who is the author's wife. She's my sister, and her elder sister also, who took me to Guruji. And I always feel like blessed to have her in our life so that we could meet Guruji, who is like Lord Shiva himself. And now I would like to invite Rahul uncle for giving his insight regarding this chapter, why he has written and how he has written, and over to Rahul uncle now. Thank you. जय गुरु जी। ये आज ये जो सिलसिला जो लड़ी चल रही है बुक रीडिंग का, ये 8th सेशन है। इसके पहले जो 2 सेशन था, उस सेशन का जो चैप्टर का नाम था मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, उसी सिलसिले में मैं बताया था कि ये जो चैप्टर 2 था वो थोड़ा सा कंसाइज था, और एंटायर बुक इट इज अ जर्नी टू डिस्कवर द डिविनिटी ऑफ अ गुरुजी। इस जो चैप्टर आज शुरू हुआ है कि अस्वेजिंग विथ कंपैशन एंड हीलिंग, इसमें हम कोशिश करते हैं ढूंढने के लिए, ढूंढना तो जरूरत नहीं है, बट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दुनिया के सारे लोगों को। इसका मतलब नहीं कि जो सिर्फ गुरुजी के फॉलोअर है, जो गुरुजी से जुड़े नहीं भी हुए, कल ये किताब कोई पढ़े या कोई भी हमसे सुने, उनको हम बताना है कि गुरुजी वाज अ डिविनिटी इनकार्नेट। तो डिविनिटी इनकार्नेट के लिए ये जो चैप्टर में हम आज डिस्कस किए ब्यूटीफुली, पंकज अंकल और उषा सिंह आंटी, बोथ ऑफ देम they have explained how Guruji expressing his supernatural powers, divine powers, have cured people of their sufferings. So इस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूँ कि सत्संग अगर लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योर हो रहे हैं डिजीज से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से और दूसरे एस्पेक्ट से, लोग उनको कोई रिहाती मिल रहा है, कोई रिलीफ मिल रही है, इट्स ऑल राइट। बट ये सत्संग को थोड़ा हम ओरिएंटेशन करें कि इसमें गुरुजी का डिविनिटी कहाँ पर है, हाउ ही इज ऑल्सो गाइडिंग अस टुवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ, सो दैट वी ऑल्सो मूव क्लोजर टू गुरुजी और गॉड। गुरुजी बोलते थे कि मैं तुहानू रब दे नाल जोड़ना है। रब दे नाल जोड़ना किस तरीके से, ये एक तरीका होता था कि गुरुजी आप लोगों की सफरिंग, दुनिया की सफरिंग को देख के he felt super compassion, and this super compassion comes from his divinity। एक डिवाइन पावर की जो इतना कंपैशन दिखा सकता है,
हमारे मन में कुछ आता है, हम डिस्क्रिमिनेट करते, ये बिलोंग नहीं करता हमारे कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियन, कंट्री, नेशन, एटसेट्रा। बट एक जो डिवाइन पावर है, गुरुजी जो लॉर्ड शिव के इनकारनेट है, उन्हीं के ये था क्षमता कि he will not discriminate among people, and his compassion आप लोगों को लोगों की दुख देख के, उनका सफरिंग देख के, automatically it was a spontaneous expression of a compassion that is called grace of Guruji. And वो जो compassion होता है, that is universal and that is divine. So that is whatever sufferings he has cured, because of his expression of compassion is expression of divinity. This is the intention of this chapter. Examples, because दुनिया में आप ऐसे generally बोल दोगे कि he was full of compassion and he expressed his compassion and cured people, people will not believe it. That's why सत्संग का सहारा लिया गया है. कुछ एग्जाम्पल, चुने हुए एग्जाम्पल, there are millions, there are thousands of such satsangs, but it is impossible to, even a Dibya Abha or the light of divinity has a limited number of satsang. Subsequently, people are coming out who have come to Guruji's saran and being blessed. They are also expressing now कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम कैसे गुरुजी हमको कैसे ब्लेस करते थे. सो ये सारे चीज को देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि टू रियलाइज हाउ डिवाइन गुरुजी वाज. ये जो डिविनिटी होता है या सुपरनैचुरल पावर क्योर करने का होता है, वो तरीका हम कोशिश किए हैं अपने छोटी सी दिमाग से उसको थोड़ा लॉजिकल स्टेप देने के लिए. एक किताब में भी शुरुआत में किया गया, जो कि कंपैशन इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट इज एक्सप्रेसिंग हिज सुपरनैचुरल पावर्स फॉर क्योरिंग पीपल. वो कैसे करते थे? देयर आर 4-5 वेज जो कि कंबाइंड सिस्टम होता है. आपको पता है कि जो सफरिंग होता है, जो डिजीज होता है, इसका 3-4 डायमेंशन होता है. एक होता है आपका जेनेटिक मेकअप, उसको बायोलॉजिकल सेटअप किया जा सकता है. दूसरा है कि आपका साइकोलॉजिकल मेकअप, हाउ यू टेक थिंग्स, हाउ यू परसीव थिंग्स, हाउ यू थिंक, that is that part. The third aspect is your social aspect, how you relate to others, including your immediate family members, kith and kin, friends, and society at large. So ये तीनों को मिला के इसको बोला जाता है कि ये एक बायो साइको सोशल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि बंडल, ये सारे चीज लेके आपका हेल्थ अफेक्ट करता है. गुरुजी अपने डिवाइन पावर के थ्रू ये तीनों चीज को मतलब he tries to ameliorate, remove the obstacles in these 3 areas. And Usha Aunty rightly had said, I have also said in another chapter, जो कि पतंजलि योग सूत्र को डिटेल्स बताया गया. क्यों बताया गया? क्योंकि ये जो शिव जी के अवतार महायोगी होते गुरुजी थे, गुरुजी है, वो ये सारे चीज को एक्वायर किए हैं, या इट इज innate, it is inbuilt in the in him. So इस चीज को 3-4 वे में देखा जा सकता है. एक पतंजलि योग सूत्र में बताया गया उनके विभूति पाद पार्ट 3 में कि जब महायोगी अटेंड करते हैं कैवल्य समाधि, उस स्टेज में उनको ऑल नॉलेज, दैट मीन्स दे नो एवरीथिंग, उसका सबसेट होता है. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट कि आप बिना बोलिए, वो एक शब्द है, बिना बोल के सब कुछ जानता. मतलब यू नीड नॉट टेल योर एलिमेंट, बट गुरुजी विल नो अबाउट योर एलिमेंट एंड ही विल से कल्याण किता जा. बंदे को पहले नहीं पता कि उसके दिमाग, उसके बड़ी के अंदर ये बीमारी है. बाद में जा ये टेस्ट कर, वो पता लग जाता है कि ओह, गुरुजी इज राइट, he has the same problem, and Guruji already बोल दिए हैं कि कल्याण किता. That means I have blessed you, go through whatever you want to go. और बोलते थे डॉक्टर को अपना काम करने दो,
मैं अपना काम कराऊंगा. मतलब you go through that process through the medical treatment, but I have blessed you and you will be assured of being cured. So ये था कि बिना बोल के जानता है. He would know without your telling about your problem. The third aspect of all knowledge is he knew about your past, present, and future. That means your suffering का अगर कोई past reason और present reason भी है, he knows it, and he will tackle that situation accordingly through his divine power. Now, the fourth aspect is he has the microscopic vision. आप लोग जो नहीं देख पाते अपने बॉडी के अंदर क्या है, कौन सा माइन्यूट सेल में क्या, he could know. That is called microscopic vision. पहला वाला जो था कि past, present, future, it is called Trikaldarshi. He could see all the time periods. Next comes the beyond sensory vision. आप लोगों के या हम ऑर्डिनरी लोगों की जो विजन होता है, वो विजन होता है कि हम अपने सेंसरी आंख, टच, टंग, एक्सेट्रा, इसी से हमें जो 5 सेंसेस है उसी के थ्रू हमारे दिमाग का इंटेलिजेंस लगा के प्रीवियस एक्सपीरियंस की एनालिसिस करके हम बोलते हैं कि ये चीज़ ये हुआ है. बट गुरुजी वाज बियॉन्ड दो जो सेंसरी knowledge. He had the extra sensory vision. That is another supernatural power. Combine all this, then comes a curing of the diseases. उसी सिलसिले में होता है कि destruction of cells which are cancerous, which are dangerous, which are creating problem to you, that is called dematerialization. Removing anything, उभान कर देना, that is called dematerialization. तुम्हारे बॉडी के अंदर उसको खत्म कर देते. वो कई सत्संग में है. I need not quote all of them. You in this chapter as well as in Light of Divinity, as well as you people might have heard from others sangat, that is also there. Now comes to materialization. Akash Sethi ki wife Punam Sethi, she didn't have a proper fallopian tube, but Guruji's blessing say that was regenerated and she could conceive. So she can also materialize things. That is another way of, you can say, through his compassion, whose grace and his supernatural powers, he cures people. So all these powers, 4, 5 powers combined together, he expresses his divinity and supernatural power. So this is the theme of this chapter, and one by one the satsangs have described to give testimony that it is not we are talking not out of a blue or out of air. This has happened with the real people in the real life. That's why we have given the names. Some people say, why you have given the names? You should not have given the names. But it is essential to give the names to give some kind of credibility to the description. People are still surviving, like Usha Singh. Today, she was here. She was giving the testimony of her own satsang. That's why the names have been mentioned. So with this, I thank the multilingual Sevadar team, Vasan uncle and his team, Savanga Singh uncle and Usha Singh auntie, particularly Usha Singh and Uda Bhanu, who is called Chinu in our family circles. They are awake at this odd hour. It must be 1 o'clock in Seattle, and they are ready to do the seva of satsang to benefit of all of you. I thank heartily from all of you, including the Sangat, who are participating in today's book reading cum analysis. Jai Guruji. जय गुरु जी. जय राहुल गुरु जी. अंकल, बस एट दैट आपने कहा कि इतनी रात को ऐसा लग रहा है कि गुरु जी के साथ एम्पायर स्टेट में जितनी रात हो जाती थी उतने ही ज़्यादा आंखें खुलने लगती हैं, और गुरु जी के साथ जैसा होता था रात होते होते सुबह हो जाती थी. मुझे लगता है जैसे ये रात गुरु जी के नाम की थी, और पूर्णमासी का दिन और रक्षाबंधन का दिन, ये बहुत ही ऑस्पिशियस समय है, और हम सबको गुरु जी ने आज जगा करके हम सबका कल्याण भी कर दिया गुरु जी ने.
So thank you so much for this opportunity. Thank you, Ushaji, for mentioning this also. Yeah, I did not realize it is Raksha Bandhan, night of full moon night. Yeah, you mentioned you saw Guruji in the moon sometimes ago in Empire State. I remember that. And also, I want to mention one thing. Today, even Singh and Uncle mentioned that if you try to speak about Guruji's blessing, it will take, so many lives to tell. So I was thinking how it could be so many lives to take to express his blessings. Then I realized many times Guruji has blessed many Sangats a life, new life. So after a new life, what are the every breath you take is a blessings. So that way, I think you cannot have like you will take lives to explain all your blessings about Guruji, and because you are breathing, every breath is a blessing. So definitely you will take a lot of life to explain all these blessings. So that way, I think whatever Uncle Ji mentioned and everybody mentions regarding Guruji's blessing is true and valid, and whatever comes to whatever it came to my mind, I just explained. I was not prepared for this one. And now I would definitely thank to the multilingual team, especially Mr. Vasan Uncle for arranging this satsang and reading of this book and recording the book also, because many times many of the people, many such sangat, they don't read the books, they don't find time, or they can actually in this way they can listen to this satsang online wherever they are on the way or wherever. Now internet is free almost everywhere. So thank you, Vasan Uncle and the multilingual team for arranging this session, and thank you, Rahul Uncle and Usha Aunty and Pankaj Uncle for giving your time and your reading and the analysis. Jai Guruji. Over to Vasan Uncle. I think thank you very much multilingual from my team. side also to Uday Bhanuji for the wonderful intervention that you did, and my Usha Bhabi for the wonderful Sangat and phenomenal instances that she was able to relate to everybody, to the multilingual Sevadas team, which is doing a phenomenal job of spreading Guruji Sangat and the message across the world, and Rahul Uncle for this being the Sutradhar of this book and conveying all the feelings, emotions, and Guruji's goodness all around. Thank you very much. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Sat Sangat. Thank you. Jai Guruji. Handing over to Vasan Uncle and team. Anantam Shukrana. Thank you, everyone, for this beautiful session. Thank you, Rahul Uncle, for this beautiful, beautiful book which you have written, so eloquently articulated. And thank you, Mr. Pankaj, for the beautiful language proficiency you used. It was so much relatable. And also, thank you to Usha Singh Aunty, जिन्होंने इतने अच्छे से सारे सत्संग्स को correlate करके सुनाया. And as if though we have not met Guruji, but I felt that even I was living those moments of Empire State. So Anantam Shukrana, and thank you, Mr. Uday, for the introduction of everyone. Anantam Shukrana. Thank you, Guruji. A very happy Raksha Bandhan to everyone, and happy Purnima. Jai Guruji. We'll take Jai- Agya now, Sanjay ji. Thank you so much for everything, for hosting this also. Thank you so much.